और ये राइडर वेट डेट के कार्ड्स का पैक होता है, उसके थ्रू मैम आप Okay, so we can take up anybody who is actually wanting to talk about any card I ask them to. So let's start with people who have no idea of, the cards. So please raise your hands and Swati will take up one after the other. Ma'am, there is a Ispreet ma'am Singh. What's the magician card? Hanji, Ispreet ji. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. आपको tarot cards का कोई idea नहीं है, Ispreet ji? Ma'am, actually, I don't have any idea. Actually, my sister got the reading for myself once around 3-4 years back from Gurgaon, somewhere from Gurgaon. You got it done at Gurgaon? Yeah, my sister got it done for myself. Okay. And the prediction was pretty good. Okay, all right. So after that, COVID happened and never met anybody else there. तो आपको कोई कार्ड रीड करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए? Shall I ask you? Sure, ma'am. Sure. Okay. So let's do this one. ये जो 9 कार्ड दिख रहा है आपको, ये hermit लिखा है इसके ऊपर. Can you see this card where my like this cursor is moving on? Yes, ma'am. Okay. तो अब आप इसको देख के बताइए कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? How you want to decode it? Ma'am, the person is seeing the path. The light is there. Ma'am, holding the stick. थोड़ा सा Ispreet जी आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है. There is some echoing happening. Person is holding the light. Yes. And stick. And ma'am, he's seeing the way or showing the. Ma'am, he's seeing the way basically. Okay. And it's basically water on which he's standing or clouds. Okay. Quite good. Actually, yes. जो पिक्चर में है वो आपने क्लियर कर दिया. अब अगर सपोज करिए कि कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस टाइम, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क समथिंग और यू हैव something related to somebody who's wanting to know something, anything, any question comes to your mind, please आप मुझे बताइए, उसको हम रिलेट करते हैं. मेरा थोड़ा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रही हैं. ओके, ठीक है. हाँ, तो अब जैसे इस कार्ड में अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है और आपका क्वेश्चन है कि ये क्यों है और कैसे ठीक होगा, ये कब ठीक होगा टाइप्स. ऑलराइट. तो अगर हम इस कार्ड को लेते हैं, वैसे तो हम एक ही कार्ड से कभी भी मतलब रीडिंग कर सकते हैं, बट वी प्रेफर 1 2 3 4 विच एवर नंबर यू वांट. देयर आर सर्टन लेआउट्स. जब हम कार्ड्स को स्प्रेड्स जैसे बोलते हैं, जब हम कोर्स अपना करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग स्प्रेड्स हम सीखते हैं. जैसे अगर मेरे ही कोर्स को आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको सारी तरह की स्प्रेड्स बताऊंगी. तो स्प्रेड के अंदर इट कैन बी अ 1 कार्ड स्प्रेड टू मल्टीपल कार्ड स्प्रेड. Depends on my intuitive power or my intuition coming to that particular time, that particular point of time the person is asking me. उस टाइम पे डिपेंड करती है ये बात कि मेरा मन एक कार्ड उठाने का कर रहा है, 2 3 4, इट ऑल डिपेंड्स उसके ऊपर. ठीक है. तो अगर सपोज हमें सिर्फ इसी कार्ड से रीडिंग करनी है और शायद मेरे को लगता है चलो दूसरा भी ले लेते हैं. अब आप दूसरा भी लीजिए, स्ट्रेंथ वाला भी ले लीजिए. इसमें आपको क्या लगा? We'll relate two of them. Ma'am, there is a sign of infinity above the lady. Yeah. And the lady is holding and playing with the lion that depicts the lady friend. That's basically Venus, if we can depict. Yes. According to Astro. And there are flowers. You're relating Venus with what? Lady Luck. Okay, lady. All right. Okay, I thought the number you're talking about. That's okay. It's all right. Yeah. The number 8 is basically of Shani. Yeah. That's what I just missed that part. Yeah. Tell me, please.
और बताइए। And ma'am, she's playing with lion, ma'am. That depicts strength. The infinity sign. That's basically infinity is going on. ठीक है, तो अब आपकी सिचुएशन या आपके क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने जब पहले कार्ड का मैंने आपसे पूछा था कि मुझे इस कार्ड के बारे में बताइए, तो शायद उस टाइम पे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया, तो इसको हम उससे रिलेट पहले करने की कोशिश करते हैं। आपने बोला कि वो लाइट लेके खड़ा है इंसान, आसपास आपने क्या बताया था? पानी, पानी बोला था ना? पानी एंड क्लाउड, वाटर और पानी क्लाउड। एंड क्लाउड। तो जो एनवायरनमेंट है उस कार्ड का, वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं, कुछ एक ग्लूमी सा एनवायरनमेंट है बेसिकली। Yes, तो ma'am. जब हम कार्ड Yes, पहले ma'am. देखते हैं तो हम उसके एनवायरनमेंट को चेक करते हैं कि उसमें आसपास क्या है, ओवरऑल क्या नजर आ रहा है। तो ओवरऑल इट्स लाइक नॉट अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट। अगर मैं इस पहले कार्ड को, नंबर 9 वाले को देखूंगी, तो इससे ये पता चल रहा है कि ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट इज रिलेटेड टू दिस। और वो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ नए की खोज में, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अगर आपका एक प्रोफेशन अभी है, मे बी आपका बिजनेस है, तो आप उससे Yes. उतना सेटिस्फाइड नहीं है, एंड यू आर वांटिंग टू गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड फॉर ऑप्शंस। Yes, ma'am. I'm looking forward इज for इट new सो? options. ओके, सो Yes. दिस इज परफेक्ट, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर सपोज मैंने अभी आपके लिए कार्ड चूज किया, आई स्क्रॉलिंग इट डाउन, आई जस्ट डोंट नो अबाउट यू, मैं इस प्रीत जी को नहीं जानती हूँ, मैंने स्क्रॉल किया, मेरा इसी पे जाके कर्सर रुक गया। So of course the energies got connected, if you believe. So ये कार्ड आपकी सिचुएशन बता रहा है, क्योंकि मेरे मन में वही थॉट था कि मैं इस कार्ड से आपकी सिचुएशन पहले समझ लूं। आपका क्वेश्चन आया exactly perfectly matching with the situation that you are looking for more options. All right. So now going further, अब आपको उसके लिए क्या चाहिए? You're actually you have to see now the other card. आपने खुद ही मुझे बताया कि ये लेडी लक, जैसे आपका ध्यान उधर गया लेडी लक की तरफ, और आपका ध्यान इस एनवायरनमेंट में भी जाता है कि पॉजिटिव है, इन्फिनिटी की तरफ आपका ध्यान गया, एक लायन को उसने कंट्रोल किया हुआ, उस तरफ आपका ध्यान गया। सो सबसे पहले ये है कि यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको Yes. आप में बहुत करेज है। सो जैसे कार्ड्स के अंदर अगर लेडी फिगर दिख रही है, ऑफ कोर्स अगर आपके माइंड में लेडी लक वाला चीज आया, तो किसी ना किसी सिचुएशन में वो फिट हो सकता है और वो परफेक्टली जा सकता है। बट अगर मैं आपको कार्ड की एक्सप्लेनेशन का बताऊं, तो जो फिगर उसमें नजर आ रहा है, इफ लाइक इन 9 नंबर इट इज अ मेल फिगर एंड इन दिस 8 नंबर इट इज अ फीमेल फिगर। कार्ड की रीडिंग में मेल फीमेल से हम उसको कंफ्यूज या रिलेट नहीं करते। अगर इशप्रीत जी ने मुझसे कुछ पूछा एंड only this card comes in, I want to do a reading with this strength ka card, and this lady can be like Ispreet ji at that time. So it is just a human figure, an individual at that time. So we don't say कि वो lady है तो lady को ही हम decode करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। But yes, अगर आपकी सिचुएशन में मैं इस कार्ड को देखूं तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिख रही है, एंड अगर सपोज दिस लेडी इज टू बी कंसिडर्ड यू एज अ पर्सन, तो आपको उस स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप में वो इनफाइनाइट पावर है, जो इसके सर पे इंफिनिटी सिंबल है। यू हैव द इनफाइनाइट पावर टू कंट्रोल अ सिचुएशन लाइक लायन। यू गॉट इट? Fine, ma'am. So you need that now, okay? अब जैसे इसका जो टाइम पीरियड पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रॉल करूंगी, आप मुझे बताना कि किस पे मैं स्टॉप करूंगी, उसी पे लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट। आप मुझे स्टॉप बोलना, ठीक है? आई विल जस्ट स्टॉप देयर व्हेरेवर यू से। Just let me know where I have to stop. I've covered all of them, so now please let me know where I have to stop. Can you tell me that? Ma'am, it's not moving. The slide is not moving. आप मुझे बस सिर्फ स्टॉप बोल दीजिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप मुझे बस एक स्टॉप बोल दीजिए जब आपका मन करे। वो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा मेन विंडो पे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। मैम आप साइड विंडो पे स्क्रॉल कर रहे हैं, मेन विंडो पे मेन नहीं, मैं विंडोज। अच्छा आप देख के करना चाहते हैं? ओके, आई थॉट कि मैं रैंडमली करना चाह रही थी कि आप बिना देखे करें, सो दैट आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या निकल के आएगा। बट इट्स ओके, आई कैन डू हियर। स्टॉप। इट्स ऑन द मिडिल नाउ। अच्छा, अब ऊपर जाऊं कर्सर लेके या नीचे आऊं, ये बताओ? मैम ऊपर वाला कर लीजिए। ऊपर, ऊपर वाला, ओके ठीक है। तो हम इस पे कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द कार्ड व्हिच आई थिंक जो 18 नंबर जिस पे लिखा हुआ है, ये कार्ड आया। इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है? आपकी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन, हम ये दोनों कार्ड्स को रिलेट करते हैं। जरूरी नहीं है इन दोनों को करना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों को रिलेट करके
आपको बताऊं, ये मून कार्ड है। अभी जो आपको चेंज ऑफ जो भी आपका प्लान है, अभी आपका वर्क का चेंज का प्लान है, क्योंकि आपके पिछले कार्ड्स में कुछ इस तरह का आया था। यू वांट टू चेंज योर वर्क वेयर यू आर राइट नाउ? Yes, ma'am. You want to do that, okay. So अब जैसे मून कार्ड आया है, तो मून जो है एनीवेज हमें पता है कि मून को हम इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, यू नो, मून इज लाइक इमोशंस। तो ये कार्ड जो है वो कहीं एक इमोशनल बैलेंस और ये जो स्ट्रेंथ है, जैसे ये दो आपको ये एनिमल और डेंजरस एनिमल टाइप नजर आ रहे हैं। आप बताइए इसमें क्या आपको दिख रहा है? स्कॉर्पियन है, ये डेंजरस है, ठीक है? Scorpion and two wolves. Yes, ma'am. हाँ, अच्छा, इनसे कुछ इससे कुछ आप डिकोड कर सकते हैं? जो दो पिलर्स जैसे हैं, कुछ समझ आ रहा है इसको देख के? आपको क्या लग रहा है? Ma'am, these are two pillars of what we say, किले के pillars हैं. In and, your situation, what you feel can be this? Ma'am, pillars, family. We can consider family as a pillar. Yeah, you can do that. And sometimes you know कि दो तरह की कोई बैरियर्स हैं जिसके बीच में ही आप सोच रहे हो, आप बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे. यू आर having a difficult time because your emotional balance and your courage is kind of mixed up somewhere. ये courage दिखा रहे, जो ये animals दिख रहे हैं, कोई wild animals जो है, तो ये इनके डर से वो courage भी आप में lose हो रही है कहीं, क्योंकि कुछ इस तरह की नेगेटिविटी कह लो या कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आपके सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन बन रही है जो नेगेटिव एलिमेंट को डिपिक्ट कर रही है. और ऑफ कोर्स मून जो आपका इमोशन है, और कहीं ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दो कंस्ट्रेंट प्रिसाइसली दिख रहे हैं, इसी के बीच में वो सब हो रहा है. ये आपकी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, यू नो, लाइक विद योर थिंग कि जहां फाइनेंशियल चैलेंज में हो, तो कहीं आपको एक बंधा हुआ दायरा सा कुछ है जिसके बीच में योर जगलिंग, यू नो, जैसे आपका एक स्ट्रेंथ और आपका इमोशन कहीं वो मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. इज दैट सो? उसी के बीच में टम्बल टॉस कर रहा हूँ. यस मैम, इट्स ट्रू. आप प्लीज थोड़ा सा क्लियर बोलिए स्प्रीत जी, वॉइस इज नॉट. यस मैम. Is it so? Okay, that's wonderful. That is very, very nice because of course I don't know you and we were just scrolling the cards, so that's nice. Okay, अब हम दूसरा कार्ड ले लेते हैं. Are you married? Yes ma'am. Okay, you have a child? Yes ma'am, a daughter. Okay, daughter. So you are actually worried about her future and you know, आजकल ऐसा कुछ हो रहा है आपके दिमाग में, ज्यादा चल रहा हो ये? No ma'am, currently she is 8 months only. हाँ, बट स्टिल ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि फाइनेंशियली चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आजकल ये बात ज्यादा हो रही है कि इसको अच्छी एजुकेशन देनी है प्रोबेबली, या इसको यू नो कहीं वो ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं आजकल आपके दिमाग में रिलेटेड टू योर चाइल्ड. I'm making up the setup that I'll make some financial setups for her, that when, because ma'am right now currently I'm 40. Okay. And till the age she'll be coming 21 or 22, I'll be around 60. So I'm planning in such a way that when she gets at that age, she won't have any efforts of any education के टाइम पे कोई उसको फाइनेंशियल इश्यूज ना हो या कोई इश्यूज ऐसे ये ना आए. आपके दिमाग में चल रहा है ना स्प्रीत जी अभी? जी मैम. सो वी कैन से इसका मतलब एक यस आप बोलना चाहेंगे? इज दैट सो? यस मैम. यस मैम. दिस इज गोइंग परफेक्ट विद द कार्ड. तो आपकी सिचुएशन जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो दिख रहा है, द रीजन इज दैट यू आर juggling between your emotions and your strength, और वो कहीं आपको आगे बढ़ने से मना कर रही है या रोक रही है या प्रॉब्लम आ रही है. एंड अगेन द रीजन कम्स आउट हियर, यू नो, यू आर वरीड अबाउट योर चाइल्ड्स फ्यूचर एंड ऑल दैट. सो नाउ क्विकली आई जस्ट गो एंड सी कि आपको उसके लिए करना क्या है. आई जस्ट स्टॉप इट, यू नो, एट वन ऑफ द कार्ड्स मे बी. सो मैं ही रोक लेती हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने रोक लिया. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये हीरोफेंट का कार्ड आपके सोल्यूशन के लिए आया कि आपको क्या करना चाहिए, सो आपको ये एक जैसे अगर आपने चेंज करना है अपना वर्क सपोज, तो अगर आपके माइंड में एक या दो ऑप्शंस हैं, सो मेरा ये गाइडेंस इसमें ये रहेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो थोड़ा सीनियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड हो और जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो आपके लिए एक मेंटोर की तरह हो सकते हैं. इट कैन बी समबडी फ्रॉम द फैमिली. उनसे गाइडेंस लेके ही आप चेंज करेंगे. अगर अपना कोई प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, जो भी आपको करना है, उनकी गाइडेंस लेके ही अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए परफेक्ट जाएगा. एंड जो आपके जितने भी चैलेंजेस और टेंशंस और जो कंफ्यूजन्स हो रही हैं, वो
उस पर्टिकुलर चॉइस के साथ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग। तो ये जो कार्ड अभी ये वाला आया है, मैंने ऑफ कोर्स कार्ड मैंने जो अभी आगे मैं प्रिडिक्शंस करूंगी, दैट इज गोइंग टू बी विद माय डेक ऑफ कार्ड। दिस इज आई एम जस्ट स्क्रोलिंग टू प्रोबेबली मेक यू अंडरस्टैंड, यू नो। सो बट ये होता है कि जब मैंने ये भी मैंने कार्ड्स जब रखे हैं, सो ऑफ कोर्स वो एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। देयर इज समथिंग हैपनिंग बिकॉज Ishpreet is asking something and it is, you know, connecting with my energy somewhere. That's what the system is all about. तो ये वाला जो चीज अगर आता है कार्ड, तो आपसे रिलेट कहीं ना कहीं करेगा ही। There is no way कि वो आपके साथ रिलेट नहीं करेगा, because right now we are talking. Okay? ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो हम अपने कोर्स पे जाते हैं फटाफट से, so that we can have more time for the predictions thing. All right? Thank you, ma'am. Yeah, most welcome. So yeah, go to the other one. ये मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है स्वाति? स्वाति, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा था वो? यस मैम, अब नहीं आ रहा। अब आप नहीं, वो जो पहले मैंने ओपन किया हाँ जी, था जी जी आ रहा था वो? हाँ जी। अच्छा, ओके, ये वाला ना? यू कैन सी इट? कैन यू सी दिस? नो मैम। यू कांट ना? मेरे को लग रहा था कि वो नहीं आ रहा है। मिनट रुको, देयर इज, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टुडे विद दिस। आएगा ये, दिस विल बी हियर। ओके, सो आई होप अब आपको नजर आ जाए ये स्क्रीन मेरा। या इज इट ओके नाउ? इफ यू कैन सी इट? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हमारा जो कोर्स कंटेंट होता है, क्विकली विल रन थ्रू दैट। मतलब एक्चुअली कोर्स कंटेंट स्वाति विल शेयर, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कार्ड्स जो हम करने वाले हैं उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे हिस्ट्री क्या है टैरो कार्ड्स की, जैसे आजकल के टाइम में हम टैरो कार्ड्स को ऑकल्ट के साथ रिलेट करते हैं, बट ये एक्चुअली जैसे नॉर्मल हमारे जो कार्ड गेम के कार्ड्स होते हैं, दे आर लाइक अनदर कार्ड गेम कार्ड्स, समथिंग सिमिलर टू मॉडर्न डे ब्रिज। जो एक गेम होती है ब्रिज, उसी तरह से ये कार्ड्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड टैरो कार्ड्स आर बिलीव्ड टू बी फ्रॉम यूरोप इन द लेट 14th और अर्ली 15th सेंचुरी। मतलब ये 14 या 15वीं सेंचुरी से इन कार्ड्स को पहली बार ये सबके नॉलेज में आए थे। ठीक है, इनके कई तरह के मीनिंग्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। हिब्रू में इसको तोरा बोला जाता है, तारो बोलते हैं इसको, एक इजिप्शियन में तारोश बोलते हैं, लैटिन में रोटा या व्हील, व्हील ऑफ कर्मा भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको कार्ड्स या पत्ते भी बोलते हैं। ठीक है, सो एडवांटेजेस जो है हमारे टैरो कार्ड रीडिंग के, इट इम्प्रूव्स योर इंट्यूटिव पावर, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मीनिंग टू योर ओन लाइफ सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने अभी किसी को बताया भी था, जो एक पार्टिसिपेंट थे, कि टाइम टू टाइम जो हमारा हम जो रीडिंग अपनी इम्प्रूव कैसे करें, तो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर कार्ड्स को यूज करते हैं विद अ गुड इंटेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि एक प्योर फॉर्म ऑफ यू नो रीडिंग का एक तरीका है, तो ऑब्वियसली आपको उसको एक स्पिरिचुअल तरीके से रखना है। तो अगर हम उसको इस तरह से यूज करें, तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो उसको बहुत ज्यादा helpful बना देती है to find meaning to your own life and life of other people also. You can help them by doing that, and it helps in identifying solutions again for yourself and for others. अपने लिए भी solution के लिए और दूसरों के लिए भी आप इसको वैसे यूज कर सकते हो। helps getting clarity in many aspects. इसके अंदर ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पता नहीं कितनी तरह की मोडालिटीज आती हैं, बट उसके अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी में आप सालों भी लगाओगे तो इट इज सो वास्ट दैट यू विल एक्चुअली स्पेंड सो मेनी इयर्स एंड प्रोबेबली यू विल नॉट गेट द परफेक्ट आंसर टू सो मेनी थिंग्स। तो अगर कार्ड्स जो, अगर मेरे अपने केस में भी मैं देखती हूँ कि अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी जैसे आती है और मैं अगर उसमें भी कहीं स्टक हूँ, तो मुझे पता है कि जो कार्ड्स हैं दे विल गिव मी द फाइनल आंसर, द फाइनल सोल्यूशन। You know, so it helps getting clarity in many aspects. कहीं मैं yes no पे भी अगर अटक जाऊंगी ना,
तो वो कार्ड जो है मेरे को बता देगा कि यस आएगा या नो आएगा. सो इट गिव्स सो मच ऑफ क्लैरिटी सो मेनी टाइम्स. सो दिस इज समथिंग जो एक सपोर्ट है आपका. brings in clarity in both smaller as well as larger areas of your life. ये हम आगे अभी देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकानस और माइनर अरकानस. तो ये जो मेजर अरकानस होते हैं वो मेजर लाइफ इवेंट्स के लिए होते हैं, जो माइनर होते हैं वो आपके माइनर इवेंट्स, लाइक जो इतने बिग इवेंट्स नहीं है लाइफ के बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके लिए होते हैं. वो हम इससे कार्ड से अपने आराम से समझ सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी और औरों की लाइफ के लिए भी. brings in inner peace. एंड जब आप इन कार्ड्स के साथ रीडिंग करते हो, बिलीव मी, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि स्पिरिचुअली हम इंक्लाइंड होते हैं तो रीडिंग अच्छी आती है, तो कहीं आपका वो स्पिरिचुअल एंगल इतना स्ट्रांग होता ही रहेगा कि आपको लगेगा कि जब मुझे आज रीडिंग करनी है सो लेट मी जस्ट प्रे बिफोर दैट, बिकॉज दैट रियली वर्क्स. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, अगर आप किसी भगवान किसी चीज में भी बिलीव नहीं करते, जस्ट सिट एट sit at a place and sit at peace and just improvise on your thoughts. अपने ही thoughts के बारे में जो भी आपको लग रहा है उस टाइम पे आपको एक कनेक्ट बनाना है with the environment कि आप you are so well connected that you can actually be like, जैसे होता है ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए उस तरह का और आप अपनी रीडिंग दे पाओ. तो एक इनर पीस डेवलप करनी है आपने, वो भगवान की पूजा से आ जाए या आपके अकेले शांत बैठने से आए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद दैट. तो आप कोई भी चॉइस उसमें कर सकते हैं. ऑलराइट. और हम जो यहाँ पे कार्ड्स करेंगे, अगर सपोज आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, सो वी विल डू अ राइडर वेट डेक. तो टेरो कार्ड्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं. इसके अंदर आपको जैसे बहुत बहुत सारे तरह के कार्ड्स नजर आएंगे, जैसे ओशो कार्ड्स है या जैसे मतलब अगर मतलब देयर सो मेनी ऑफ देम. सो राइडर वेट डेक जो है, दिस इज समथिंग विच वी एक्चुअली प्रेफर टू स्टार्ट विद. मतलब राइडर वेट इज इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेक फॉर टेरो कार्ड रीडिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज द वेट स्मिथ, राइडर वेट स्मिथ और राइडर टेरो डेक. इन तीनों नामों से इसको बुलाया जाता है. एंड ये कैसे आए यहाँ पर, ये दो जो फ्रेंड्स थे, आर्थर एडवर्ड वेट और पामेला कॉलमन, उनके कॉम्बिनेशन से, लाइक दे बोथ मेट समवेयर. और उनमें से एक जो थे वो तो बहुत अच्छे ऑकल्ट में थे और एक जो थी वो बहुत अच्छी स्क्रिप्चर थी. तो दोनों ने मिलके इन कार्ड्स का ओरिजिन स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने इन कार्ड्स को पिक्चर का फॉर्म दिया और इस तरह से ये डीकोड होने शुरू हुए. एंड ओके, गोइंग फर्दर, सो अगर हम ये आगे भी देखते हैं कि हम हमारे पास अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं. इन सब कार्ड्स को किसी को डायमंड्स, जो हमारे जो नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स है उसमें ईंट के कार्ड्स, पान के कार्ड्स, चिड़ी, हुकुम, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड होता है. तो कुछ कार्ड्स हमारे ईंट से रिलेट होते हैं, कुछ कार्ड्स हमारे पान से रिलेट होते हैं, कुछ चिड़ी से और कुछ हुकुम से. ये मैं जल्दी जल्दी रन थ्रू कर रही हूँ आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए. ऑब्वियसली इट इज अ डिटेल स्टडी, तो हम उसको बाद में करेंगे. So let's go further. Some problem happening with my, I think this mouse only, because it's not happening sometimes. Okay. अच्छा, इनसाइड ऑफ टेरो कार्ड्स. अच्छा, इसका जो कैसे टेरो कार्ड्स आए, बहुत साल पहले के अंदर, बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि लोगों के पास कोई बात करने का तरीका या कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं होता था. दे जस्ट हैड सिंबल्स. तो एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने मिस्टिकल सिंबल्स बनाए और उसको एक कॉमन सी एक लैंग्वेज की तरह डिकोड करना शुरू कर दिया. आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. सो अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. This was passed on from one generation to another by words of mouth. मतलब अगर जैसे हमने एक कार्ड्स बना लिए और उसको डिकोड करने लग गए तो वो एक जनरेशन है. जैसे मेरी फैमिली उस जमाने की अगर है तो मैंने उसको एक हिडन लैंग्वेज की तरह बना लिया और मैंने उसको अपनी फैमिली में रखा. फिर मेरी फैमिली जैसे जैसे बढ़ने लग गई उसको डिकोडिंग उस तरह से वो आगे उन फैमिलीज में रन होती गई. बट इसके अंदर एक की थी. द की वॉज टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज डिपिक्टेड इन द कार्ड्स. मतलब ये जो लैंग्वेज या जो डिकोडिंग उन कार्ड्स के अंदर थी वो सबके लिए नहीं थी.
गॉट इट? उसके मतलब वो ये कि मेरी फैमिली में अगर रन कर रहा है तो मैं अपनी जनरेशन में आगे पास ऑन करूंगी, वो दुनिया भर के लिए नहीं है। इस तरह से ये कार्ड्स इमर्ज हुए थे और उनको उसी तरह से यूज किया जा रहा था। ओके इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स आ गया है। तो मैं आपको ये ब्रीफली बता देती हूँ कि 78 कार्ड्स होते हैं हमारे डेक के अंदर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर में 22 कार्ड होते हैं, माइनर के अंदर 4 सूट्स होते हैं जिनमें 14 कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकानास को हम आगे डिवाइड करते हैं पेंटिकल, कप, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स में। आगे हमारा ये लिखा है ईच ऑफ द अबव हैव 14 कार्ड्स, एस नंबर 2 10 पेजेस, नाइट्स, क्वींस एंड किंग्स। तो इसको मैं आपको ब्रीफली शॉर्ट में बता देती हूँ कि राइडर वेट जो एक डेक है वो 78 कार्ड्स का होता है, जिसके दो पार्ट्स हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 22 कार्ड होते हैं जिनके ऊपर, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। जैसे अगर पहला कार्ड है तो उसका नंबर 0 होगा, पर उसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट कार्ड ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके ऊपर 0 लिखा है। तो 0 से लेके जब 21 तक नंबर्ड कार्ड्स हैं तो टोटल कार्ड्स 22 हैं हमारे, क्योंकि नंबर 1 जो कार्ड है वो हमारा 0 का है। So 0 to 21 makes them total of 22 cards. एंड जो माइनर अरकाना है वो 4 सूट्स में होता है, जिसमें पेंटिकल, कप, वॉन्स और स्वॉर्ड्स हैं। पेंटिकल में 14 होते हैं, कप्स में 14 होते हैं, वॉन्स में 14 होते हैं और स्वॉर्ड्स में 14 होते हैं। तो ऐसे 14 14 14 करके आपके पास जो टोटल और मिला के मेजर और माइनर अरकाना का दे कम्स आउट टू बी 78 कार्ड्स। ओके मैं आपको एक बार सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि मेजर अरकानास जो हैं वो, जैसे ये मेजर अरकाना कार्ड्स जो हमारे हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये इधर ही है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड, द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक। इसको फूल कार्ड बोलते हैं। इसके ऊपर आपको एक 0 नंबर दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट कार्ड बट इट हैज अ नंबर 0 ऑन इट। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जैसे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है इसके स्क्रीन में, द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। दो इट इज अ 0 बट 0 का मतलब ये भी होता है ना कि इट इज द बिगिनिंग ओनली। तो हर एक चीज का स्टार्ट एक 0 से होता है, तो इसको बिगिनिंग से डिकोड किया जाता है। And going to the next one is the magician card. This is the second card of the deck. It has number 1 on it. ठीक है, तो आपको ये नंबर समझाने के लिए मैं एक बार दिखा रही थी कि इस तरह से ये नंबर्स इसके ऊपर होते हैं। okay. जैसे अभी ये वाला कार्ड है आपका, इस थर्ड कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, इसके ऊपर नंबर 2 है। Then going next is number 3 which is the fourth card. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक बार दिखा रही हूँ। नंबर 4 दिस इज द फिफ्थ कार्ड। और ये जो सारे कार्ड्स हैं ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। इनके ऊपर आपको जो खास बात नजर आएगी, हर एक के ऊपर एक नंबर मेंशन्ड है, और उस नंबर को अगर आप देखें तो उसको आप अपनी रीडिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो नंबर देखते हैं उसको आप अपनी रीडिंग में आराम से यूज कर सकते हैं, और ये हर एक कार्ड आपको एक नंबर के साथ मिलेगा। जैसे ये नेक्स्ट है, यहाँ 5 है, दिस इज 6 बट इट इज द 7th कार्ड। अच्छा, ये कार्ड देख के कोई कुछ बताना चाह रहा है कुछ, बट इसके साइड में कुछ लिखा हुआ है। somebody who wants to share something, you can raise hand maybe, or maybe we'll take that later. जैसे अभी आप देख रहे हैं, जो मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड उनके लिए अभी ईशप्रीत जी के लिए खोला था, सो दिस वाज द स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये स्ट्रेंथ ही दिखाता है, 8 नंबर एनीवेज इज, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी जितना जरूरी है मैं आपको उसमें बताऊंगी। and we had this card also for him, so this is the hermit card. Okay,
So these are the major arcana cards. All right, so हम अब आगे देखते हैं. अच्छा, मैं इसमें आपको अपने कोर्स में क्रिस्टल्स के साथ भी कैसे अपने कार्ड्स को आप रिलेट कर सकते हैं, विच एज अ रेमेडी यू कैन यूज, ये भी आपको इस कोर्स में आएगा. सो ऑल दिस कंटेंट इज गोइंग लाइक दैट. मैं एक बार आपको माइनर, अच्छा जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वॉन्स के भी कार्ड होते हैं, तो वॉन्स ये हमारा अब आ गया है माइनर अरकाना. तो माइनर अरकाना जो है उसके अंदर वॉन्स मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया. तो ये 4 तरह के, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉन्स के कार्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड है, पेंटिकल है, और दिस कप्स इज देयर. सो अब जैसे वॉन्स मैंने खोला, तो वॉन का मतलब जो है वो होता है एक स्टिक, लकड़ी जो होती है. तो वॉन्स के सारे कार्ड्स में आपको ये स्टिक नजर आएगी. अब जैसे पहला कार्ड है इसका एस ऑफ वॉन्स, आपको स्टिक नजर आ रही है. 2 ऑफ वॉन्स, 2 स्टिक्स नजर आ रही हैं. 3 ऑफ वॉन्स, 3 स्टिक्स यू कैन सी. ऐसे ही आपको अगर पेंटिकल का कार्ड नजर आएगा तो उसमें 1, जहां पे 1 ऑफ पेंटिकल या एस ऑफ पेंटिकल है, उसमें आपको एक पेंटिकल नजर आएगा. 2 का है तो 2 पेंटिकल्स दिखेंगे. So everything goes like that in all the 4 kind of cards. ठीक है. So जैसे अब ये swords का कार्ड है, swords के कार्ड अब मैं दिखा रही हूँ आपको. तो यहाँ पे 2 of swords है, so there are 2 swords. You can see it in the picture only. This is 3 of swords, so you can see 3 swords here. यहाँ पे आपको 4 of swords है, तो 4 आपको नजर आ रही है, 3 तो ऊपर है, 1 नीचे है. And again going further 5. तो ऐसे हर एक सूट के अंदर आपको उसी पिक्चर से रिलेटेड, पेंटिकल है तो उतने ही नंबर के पेंटिकल्स, अगर स्वॉर्ड्स है तो उतने ही नंबर के स्वॉर्ड्स आपको नजर आएंगे. ओनली डिफरेंस विच इज गोइंग टू हैपन इज, जब तक ये 10 नंबर तक चलता है हर एक कार्ड 10 नंबर तक, तब तक हम इसको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तक बोलेंगे. जैसे ही ये 11th आएगा, ना तो आपको 11 स्वॉर्ड्स, ना आपको 11 पेंटिकल, ना आपको 11 कप, ना आपको 11 दिस कप्स, जो भी मतलब ऑल दीज 4 आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम 11th कार्ड से उसको अलग तरीके से एड्रेस करने लगते हैं. 11th कार्ड इज द कार्ड ऑफ पेज. तो हर एक सूट के अंदर जो भी 11th कार्ड है उसको आप पेज बोलेंगे. पेज अगर स्वॉर्ड का है तो पेज ऑफ स्वॉर्ड, अगर पेंटिकल का है तो पेज ऑफ पेंटिकल, अगर वो कप का है तो पेज ऑफ कप, एंड लाइकवाइज. तो आप 11th वाले कार्ड को पेज बोलते हैं, आप 12th कार्ड को नाइट बोलते हैं. नाइट का मतलब वॉरियर है. तो अगर आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड देखेंगे तभी आपको वॉरियर स्वॉर्ड का नजर आएगा. मैं वापस अगर ऊपर वाले पे जाती हूँ, तो अगर आप स्वॉर्ड से ऊपर जाते हैं यहाँ मे बी इन वॉन्ड्स, तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन दैट काइंड ऑफ वॉरियर का इमेज है. इसके हाथ में बस वॉन्ड है, उसमें स्वॉर्ड थी. अब अगर मैं यहाँ इसका पेज देखती हूँ, पेज में भी इसके हाथ में एक वॉन्ड है, उसके हाथ में स्वॉर्ड थी. तो ये पेज, नाइट, और ये हमारे कोड कार्ड्स होते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो क्वीन बनी हुई है इसमें, उसके हाथ में एक वॉन्ड है. तो ये 4 कार्ड्स होते हैं. मतलब 10, जो पहला कार्ड है वो एस है, उसके बाद के जितने भी 2 से लेके 10 तक कार्ड है, नंबर्ड कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 with their respective pentacle, sword, cup, and this wand. And then comes their court cards जो आते हैं यहाँ से. पेज हर एक के अंदर, हर 4 के अंदर ये है पेज, and then comes the knight, and then comes the queen, and then comes the king. जैसे किंग का आपको वॉन्ड नजर आ जाएगा. ऐसे ही जैसे मैंने आपको आगे भी दिखा रही थी, तो स्वॉर्ड्स में भी आपको ऐसे ही 4 नजर आएंगे. दिस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है. तो हमारा अभी स्वाति व्हाट्स टाइम राइट नाउ? अच्छा, मैं आपके साथ ये कार्ड्स के स्प्रेड भी एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ अलग अलग तरह से. जैसे कार्ड्स में अलग अलग तरह के स्प्रेड्स होते हैं. ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड एक तरह का स्प्रेड है. ओके, देन देयर इज 2 कार्ड स्प्रेड होता है. देयर इज अगेन
2 card spread of a different type. There is 3 card spread. 3 card spread इस तरह से 3 card spread किए जाते हैं. They are like sunrise spread. There's so many kind of spreads which are there in the course. So Swati, if you are there, you can share the course content and then probably we can have the readings also for everyone who's present. आपको मेरी आवाज आ रही है स्वाति? Hello? Am I audible? Hello? यस मैम. मैम आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है स्वाति? मैं ये आपसे कह रही थी कि आप कोर्स कंटेंट एक बार शेयर कर लो, जिससे फिर मैं रीडिंग्स ले लूंगी ना सबके लिए जो हाँ भी जी, प्रेजेंट है. हाँ. तो कोर्स कंटेंट शेयर कर लो एक बार. हाँ. मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूं या? नहीं मैम, हो जाएगा मल्टीपल में. ओके. मैम ये मैंने पहले इनको डिस्क्राइब कर दिया. ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो मैम सारा कवर कराएंगी. और मैं एक बार, हाँ आपने एक बार शेयर किया था, मैं भी आपको बता देती हूँ. जैसे हिस्ट्री, मीनिंग, एडवांटेज ऑफ टैरो, व्हाट इज अ राइडर वेट डेक, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया भी है. रिलेशनशिप बिटवीन टैरो कार्ड्स एंड प्लेइंग कार्ड्स अभी मैंने आपको सिर्फ स्क्रॉल करते हुए बताया. बट जब हम अगर एक कोर्स को कर रहे हैं या आप जैसे मेरे को अगर ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे, सो ऑफ कोर्स ये सब चीजें डिटेल में हम उसको शेयर करेंगे और मैं उसको हर एक चीज का आपको मीनिंग इन डेप्थ समझाऊंगी. एंड टैरो कार्ड्स keywords to memorize faster and the explanation analysis in detail. अब क्या होता है कि टैरो कार्ड, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो टैरो कार्ड सीख के भी मेरे पास आए एंड दे सेड कि हमसे रीडिंग नहीं होती है, हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आता. सो दे हैव डन इट अगेन फ्रॉम मी. द रीजन बीइंग दैट ट्रस्ट इज देयर, कि अगर मेरे को पता है कि मैं सिखा के ही भेजूंगी तो कहीं उनको ये ट्रस्ट था कि मैम ने सिखा के ही भेजना है. तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लूं कि टैरो कार्ड कीवर्ड्स टू मेमोराइज फास्टर, तो मैं उस चीज में सपोर्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू मेमोराइज देम इन अ फास्टर वे. बट मैं आपको फिर से बोल दूं कि किसी भी कार्ड को हम अच्छा या बुरा कैटेगरी में, मतलब एक होता है ना कि जैसे फिक्स नहीं कर सकते. एवरी कार्ड हैज इट्स ओन पॉजिटिव, नेगेटिव और सोल्यूशन बेस्ड और द क्वेरेंट्स थॉट बेस्ड थिंग्स इनटू दैट. आप रिजिड नहीं हो सकते टैरो कार्ड की जर्नी में. यू कैन नॉट बी रिजिड, यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी ओपन. आपको मतलब अपने जो होराइजन को थोड़ा बड़ा करना है, अपनी सोच का जो जरिया है आपका वो थोड़ा बड़ा होगा, तभी आपको जैसे जो भी लग रहा है कि थॉट्स आ रहे हैं वो तभी उसमें प्रॉपर तरीके से आप रीडिंग दे पाओगे, अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे. एंड प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस बिफोर अ रीडिंग जैसे अभी एक सर ने मुझसे पूछा था, सो ही सेड दैट कब तक रीडिंग हम प्रॉपर करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो मैंने को पता है कि फिक्स कोई टाइम नहीं है. अगेन आपकी प्रैक्टिस पे भी होता है, बट देन एक प्रिपरेशन भी होती है एक रीडिंग से पहले. तो जब हम वो प्रिपरेशन करते हैं तो रीडिंग व्हेन इट कम्स आउट टू बी गुड और अप्रोप्रिएट और हेल्पफुल फॉर समबडी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. तो ऑफ कोर्स आप रेडी हो गए, आप रेडी हो रहे हो. एवरी रीडिंग इज प्रिपेयरिंग यू फॉर गुड. तो ये मेरा भी मानना है और आई थिंक आई टीच टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड इवन दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग. उनको भी ये विश्वास होने लग गया है कि हाँ यही तरीका होता है. मोड ऑफ ऑपरेंडी एंड वर्ड ऑफ कॉशन, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए टैरो कार्ड करते हुए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए. और ये कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस टाइप नहीं है. दे आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स जो इसमें आपको बताया जाता है एंड दे एक्चुअली बिकम द वे ऑफ योर लाइफ. So in a way, when you learn tarot cards, you really, at least with me, you will learn the way of life. That's what my other students have also done in the past. And Swati herself is a student, so probably after doing all this, so she'll share how was her experience और उनकी journey कैसी थी इसमें. But anyways, let me complete this. How to keep your cards, अपने cards को कैसे रखना है. तो इसमें एक सिंपल सा जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ड्स को रखने में, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल चीज है, ये बहुत स्पिरिचुअल एंगल है आपको रीडिंग का, तो इसको आप ऐसे ही कहीं भी ले जाएं और कहीं भी मतलब रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे आप किसी अपने घर में किसी एक पायस और एक बहुत
जैसे बहुत अपनी प्रेशियस चीज को आप रखते हैं, आपको इसको उसी तरह से रखना है. देयर इज अ पर्टिकुलर वे विच वी एक्चुअली टीच और टेल द स्टूडेंट्स कि आपको उस तरह से उसको रखना है. टाइमिंग ऑफ इवेंट कार्ड में कैसे आएगा, एक कार्ड को देख के हमें पता चलता है कि ये अभी हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, या 6 महीने बाद हो रहा है, या साल बाद हो रहा है. ये सब कार्ड्स में रीडिंग सिखाई जाती है और बिल्कुल परफेक्ट आती है. एंड हाउ एक्चुअली द डिफरेंट स्प्रेड्स, मैंने अभी आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़े स्प्रेड्स दिखाए थे. रिवर्स्ड कार्ड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स. तो जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कार्ड है, हमारे जो डेक है, मैंने उसको कार्ड को खोला, वो सीधे है, और सपोज मेरा आज शफल करने का मन नहीं है, और मेरे पास एक अच्छा स्पेस है, जहाँ पे मेरा एक टेबल है, मैंने उसको एक मिक्स कर दिया उन कार्ड्स को, और मैंने उसको पैक को वापस किया, और उसमें जब मैंने कार्ड रीडिंग के लिए खोला तो कुछ कार्ड्स उल्टे आ गए. उल्टे कार्ड का मतलब उल्टा नहीं है एब्सोल्युटली, उसका एक्चुअली क्या मतलब है, या उसको रिवर्स कार्ड क्यों बोला जाता है. और कुछ रीडर्स एक्चुअली रिवर्स कार्ड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं. वो क्या है और क्यों है, और उसके साथ हमें रीडिंग कैसे करनी है, वो रिवर्स कार्ड्स को आपको पढ़ाया जाता है और बताया जाता है. Tarot and meditation. Meditation is again one form of tarot, and in my course, I make sure that my students learn the guided meditation with the card, and that way वो जो उस तरीके को मेडिटेटेड तरीके से जब वो कार्ड को समझते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि कैसे करना है, उससे क्या होता है कि वो कार्ड उनके पिक्चर मेमोरी में ही आ जाता है, एंड दे जस्ट डोंट हैव टू सी अगेन कि इसके बारे में क्या मैंने नोट्स में लिखा था और क्या मेरी कॉपी में है. आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड देन गोइंग फर्दर, इट इज एन ओवरव्यू ऑफ टैरो एंड पामिस्ट्री. थोड़ा सा एक मैं आपको, जितना इंसाइट आपको जरूरी है उतना पामिस्ट्री का, उतना क्रिस्टल्स के साथ, उतना न्यूमरोलॉजी के साथ, उतना एस्ट्रोलॉजी के साथ, जितना जरूरी है उतना आपको बता दिया जाएगा. अगर आपको लगता है आपको ज्यादा भी करना है, आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट दैट. बट ये जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को वो सब चीजें नहीं आती है, उनको एक बहुत ब्रीफ मैं ओवरव्यू फिर भी देना चाहूंगी. दैट विल बी एन एडिशनल बोनस थिंग फॉर देम. सो एडवांस टेक्निक्स ऑफ टैरो स्प्रेड्स, इसमें एडवांस टेक्निक्स भी कुछ आती हैं. इसमें एक पॉइंट है जो हमारा नंबर से रिलेटेड बेसिकली है कि न्यूमरोलॉजी में जो हम कहते हैं कि डिटेल, जैसे अगर किसी का पर्टिकुलर ईयर जो नंबर है या उसका मंथ का नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी में उतना डिटेल भी हम टैरो कार्ड्स के साथ थोड़ा सा अपने कोर्स में बताते हैं कि जैसे ये पर्टिकुलर मंथ या ये पर्टिकुलर दिन या ये पर्टिकुलर साल आपके लिए कैसा रहेगा. So the numerology part has that as well. So I think I'm through with that. So Swati, would you like to share your journey with me, with your tarot card learning and all that? Because she's the only student present here. बाकी सब students को मैंने बोला कि that, we should give others opportunity that they should join. So maybe, Swati would like to share something. यस मैम, बिल्कुल मैम. जब से मैंने टैरो कार्ड का आपका कोर्स करा, मुझे क्लैरिटी बहुत रहती है. जैसे इन द मॉर्निंग में स्टार्ट ही अपना डे टैरो कार्ड से करती हूँ, तो मुझे अपना डू एंड डोंट्स पता चल जाता है मॉर्निंग में कि ऐसे करके मुझे अपनी चीजों को हैंडल करना है, या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में अराइज हो सकती है. तो मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई कैन मैनेज कि कुछ चीजें गलत जा रही होती है तो मैं उन्हें अपने लाइंड अप करके ना थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ. और मैम जैसे जैसे इसे करते जा रहे हैं, इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग होती जा रही है. मतलब नेगेटिव है कार्ड देके कि पॉजिटिव है, वो सब इंट्यूशन आती है जैसे आपने मेडिटेशन वगैरह सिखाई है. मैम आई एम वेरी थैंकफुल. थैंक यू सो मैं मच. सबको ये बताना चाहूंगी कि आप ये करिए. आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करते हैं, आप वो धीरे धीरे आप अपने एंड से ना सॉर्ट आउट करना सीख जाएंगे, और उनको कैसे डील करना है, क्या आपको करना है नहीं करना है, वो सब चीजें आपको क्लियर होने लग जाएगी लाइफ में. तो आपको ज्यादा कहीं इधर उधर अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इससे दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं. मैम मैं काफी हेल्प भी कर देती हूँ लोगों की. कभी मुझसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता तो मैं इसी को यूज करके उनका आंसर दे देती हूँ. वेरी नाइस. अभी भी देखो मैंने 1-2 स्टूडेंट्स तो बनाई भी. अभी इशप्रीत जी को एक स्टूडेंट बनाया मैंने, उन्होंने काफी अच्छी रीडिंग्स दी, एंड आई थिंक देयर वर कपल ऑफ देम बिफोर हिम आल्सो. तो जो थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स की तरह दे वर दे हैव ऑलरेडी लर्नड इट, उन्होंने सीख लिया. उनको नहीं पता था. कोर्स में यही होता है कि मतलब करते करते हम सीख जाते हैं. जैसे वो मुझ अभी पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगता है, मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट करने पड़े. मतलब 10 डेज के बाद मतलब खुद ही हमें आने लग गया कि हाँ ऐसे ही करना है. आपने जैसे आप और सर हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही चलना है, ऐसे करना है.
थैंक यू। That will एंड help us. एक्चुअली यार राइट शी इज दैट, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमारे चैनल में लाइक दिस पर्टिकुलर ज्योतिष वंदना थिंग, इवन यू नो दीपक जी एंड मी, मतलब जब तक स्टूडेंट सीख नहीं लेता हम पीछे पड़े रहते हैं. वी हैव मोर स्टूडेंट्स. अबोनितोष जी, आई कैन सी ही हैज नॉट लर्नड टैरो एज येट, बट वो दीपक सर के भी स्टूडेंट है. अभिनोतेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? इज ही देयर? कौन मैम? मिस्टर सरकार, सर he is still on mute, I think. It's okay. अच्छा, किसी को कुछ पूछना है अभी? There are few hand raised, you know, I can see. कुछ? मैम, yes मैम, मालती. Okay, she can unmute. मैम आप अनम्यूट कर लीजिए. मैं readings अभी लूंगी, so please have your patience. So it's just that I want to clear the queries and things like that. अच्छा, Mr. Sarkar is saying that he is muted. He is not able to mute himself, unmute himself. या शर्मा जी. तो पहले हम मालती जी को ले लेते हैं. Yes, Achha, madam. okay. Yes, madam. Okay. Yes, Yeah, madam. Sharma. I am very interested. I am very interested. I am the student of Deepak sir, and I very respect and love you, madam, for your teaching, good and old teaching. Thank you, madam. Thank you, madam. For that very fact, I have joined here, and I am interested to learn tarot, madam. Oh, very nice. That's so nice. Because आप जब पहली बार आए थे ना, मुझे याद है शर्मा जी, आपने बोला था कि that you don't have much trust on the cards and all that. But if Yes, you know, I could change that because आपके fellow students से आपको जो भी feedback मिला, so that is really really nice, and I'm really thankful to the divine कि you know मैं आपको उस thought के साथ convert कर पाई कि yes it works. So I look forward to see you in my course. Thank you. Thank you, madam. या मालती जी, आप प्लीज बताइए. आप हेलो. या हाय मालती जी. मैम, मुझे ये जानना है कि जस्टिस कार्ड होता है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है जस्टिस कार्ड का? ओके ओके, जस्टिस मतलब आप जस्टिस कार्ड अगर बोले तो अच्छा, मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखाती हूँ. जस्ट जस्टिस कार्ड आपको, एक तो ये पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये मेजर अरकाना कार्ड्स में आता है. तो मेजर लाइफ इवेंट्स के साथ हम मेजर अरकाना कार्ड्स को डिपिक्ट करते हैं. क्योंकि मैं सबको एक बार जस्टिस कार्ड दिखा देती हूँ एंड देन आप ही थोड़ा बताइएगा मुझे उसके बारे में. मैम, इसके साथ कोर्स के साथ स्पेल्स भी आते हैं क्या? कैंडल स्पेल्स भी आते हैं इसके साथ? किसके साथ? ये जो टैरो ट्रेडिंग है उसके साथ स्पेल्स भी आते हैं क्या? स्पेल्स मतलब जैसे क्या होता है कि स्पेल्स एक अलग ही तरह का, इट्स अ डिफरेंट थिंग. मतलब इसमें मैं ये बोलूंगी कि जैसे मैनिफेस्टेशंस प्रोबेबली आप थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो आप इसमें ना जैसे वो एनर्जीज का ही सब कुछ है, तो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है, बट इट्स नॉट दैट, आई विल नॉट कॉल इट स्पेल एज सच. देखिए जस्टिस कार्ड है ये. भी कार्ड, आप ये कार्ड देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ. आपको क्या लगता है इस कार्ड को देख के? आप अपना व्यू पॉइंट बताइए. एंड प्लीज इग्नोर दिस लेफ्ट साइड का जो है, क्योंकि अब मैंने ये कार्ड खोल दिया है, सो इग्नोर दैट. जस्ट लुक एट द कार्ड एंड टेल मी. आई थिंक वो कार्ड के ऊपर जैसे 11 लिखा हुआ है और स्वॉर्ड्स कार्ड है, मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज उसके हाथ में स्वॉर्ड है. और जस्टिस यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पूछता है आप, मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, तो शायद आप जस्टिस कार्ड निकला तो मतलब वो पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, द गॉड डिवाइन विल हेल्प यू फॉर द जस्टिस. और मतलब ये कार्ड अपने पास रखने से मुझे पता, मतलब ये जानना है कि ये कार्ड में हम लोग को जस्टिस मिलता है क्या अगर मैं कार्ड अपने पास? यस, कार्ड को पास रखना नहीं होता है ये मालती है. मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अगर आप रीडिंग कर रहे हो, सबसे पहली बात कि आपको इसमें, आपने जैसे बोला कि स्वॉर्ड दिख रहा है, बट ये स्वॉर्ड का कार्ड नहीं है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है. इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना. जब आपका मेजर अरकाना का कार्ड होगा ना, उसके ऊपर नंबर हमेशा होगा और उसके नीचे उसका नाम होगा. जब ऑफ कोर्स आप जब उसको 2-4 बार जैसे देखते हैं कार्ड्स को, तो आपको मेजर और माइनर का डिफरेंस पता चल जाएगा. और जैसे ये समझ लीजिए किंग लाइक पर्सन अगर है,
तो ये वाला जो, अगर आप स्वॉर्ड का कार्ड होता तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड होता, अगर आप उसको वैसे किंग से कंफ्यूज हो रहे हो, या आप स्वॉर्ड देख के आपने बोला ये स्वॉर्ड का कार्ड है, इट इज अ मेजर अरकाना कार्ड। एंड जस्टिस का जहां तक आपने बात करी है, तो ये जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं वो हमारे मेजर जर्नी को बताते हैं, और जस्टिस का कार्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जर्नी को बताता है। जैसे मैंने वहां पे लिखा भी हुआ ऊपर, यात्रा का उत्तरदायित्व, मतलब जो आपका जो जर्नी है, these 22 cards depict the life journey of a person, and justice जो है वो responsibility of the journey बताता है। और अगर ये किसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आता है कि जैसे किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, सपोज एक किसी का डिवोर्स का कुछ क्वेश्चन आया और उसने बोला कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, आई एम नॉट एबल टू, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, या डिवोर्स है, या कुछ भी एनीथिंग जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम भी आ रही है और आपको बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल सकते हैं अगर ये कार्ड आ गया और सिर्फ ये कार्ड अगर आप देखते हो तो आप ये बोलोगे कि आपको जस्टिस मिलेगा, प्रिसाइसली रिलेटेड टू अ कोर्ट केस और समथिंग लाइक दैट। इवन लाइफ के और इवेंट्स में भी, जहां पे अगर आप ये बोल रहे हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा, यू नॉट गेटिंग मच पेड फॉर योर वर्क, और आपका जैसे फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं जितनी आप मेहनत कर रहे हो, तो उसमें भी अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कार्ड आता है तो हम यही बोलते हैं कि दैट हैव पेशेंस, यू विल गेट जस्टिस, बिकॉज इसमें देखिए तराजू भी है एक हाथ में, और एनीवेज ये जस्टिस का ही कार्ड है। ओके। और 11 नंबर है, देखिए 10 और 1 जो रोमन नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या इसको बोलेंगे, 11 बोलते हैं ना इसको। सो 11 मीन्स टू। सो 2 अगर न्यूमरोलॉजी का पार्ट अगर हम ले तो हम ये बोलेंगे कि जो आपके इमोशंस हैं उसको सिचुएशंस कमिंग इन, अगर ये समझ लीजिए सोल्यूशन बेस्ड कार्ड है, तो हम ये बोलेंगे कि आपको फ्यूचर में जाके यू विल हैव जस्टिस टुवर्ड्स व्हाट ऑल यू आर फीलिंग एंड व्हाट ऑल यू आर गोइंग थ्रू। आपके इमोशंस या जो आपकी सिचुएशन है उसको, क्योंकि मैं इमोशन के साथ रिलेट करने का एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ कि 2 नंबर बिकॉज इट इज रूल्ड बाय मून, एंड इट इज लाइक कि आप उसमें जो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, तो आप उसको कहीं हर एक एलिमेंट को रिलेट कर सकते हैं, बट हर एक एलिमेंट को रिलेट करना जरूरी नहीं है। अगर मुझे इस कार्ड के अंदर दिख रहा है कि मुझे ये पर्सन नजर आ रहा है, सपोज एक ये इंसान है, इसका रेड कलर मुझे ड्रेस का दिखा, तो मैं रेड कलर से उसका एंगर या उसका टेम्परामेंट भी देख सकती हूँ, मैं इस 2 से उसका इमोशन भी देख सकती हूँ, मैं इस स्वॉर्ड से और इस तराजू से एक बैलेंस ऑफ एवरी, यू कैन से एक गुस्से का जो, या एक फाइटिंग बैक का स्वॉर्ड है और एक पॉइज्ड पर्सनालिटी का बैलेंस है को भी देख सकती हूँ। आई कैन सी एनीथिंग आउट ऑफ दिस कार्ड, डिपेंड्स ऑन माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या मुझे डिवाइन गाइडेंस आती है, उस हिसाब से मैं 1 2 3 या सारी चीजें मेरे दिमाग में अगर आती है मैं वो करके रीडिंग दे सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही चीज से दूंगी, जरूरी नहीं है मैं 4 चीजों से दूं, मैं जितना भी मुझे मेरा उस टाइम पे थॉट आती है मैं रीडिंग वैसे ही दूंगी और मैं वैसे ही दूंगी अभी भी। यू गॉट इट? यस। सो एम आई मेकिंग एनी सेंस? कुछ क्लैरिटी हुई आपको? क्लैरिटी ये हुई कि जस्टिस कार्ड का मतलब है जो भी आप मेहनत कर रहे हो, मतलब जैसे जरूरी नहीं कि कोर्ट केस ही हो, जिंदगी की जैसे जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यूज हो। Absolutely. Yes. हाँ, तो Justice उससे card is a positive card. It is mostly पॉजिटिव। जितने भी major arcana cards हैं, they are most of them are positively. Primarily हम उनको positive मानते हैं, but हर एक कार्ड के अंदर एक गाइडेंस या एक वॉचफुलनेस, जैसे ध्यान देने की बात होती है, डिपेंड्स ऑन उस टाइम क्या क्वेश्चन है, उस टाइम हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं। अच्छा मैम, आपने बताया था कि हर कार्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं, तो जस्टिस कार्ड में पॉजिटिव आपने बता दिया, नेगेटिव क्या है? हाँ, इसमें आप नेगेटिव बताओ मुझे क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी, आप बताइए, चलिए पहले आप बताइए फिर मैं एक बार, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पे उस टाइम पे जब होता है, बट यस अभी मुझे नेगेटिव ढूंढ के आपको बताना है तो मुझे दिख रहा है नेगेटिव। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपेक्टेशन को लिमिटेशन दे रहा है, बिकॉज तराजू है। और जस्टिस मतलब ये कि वो बैलेंस रख रहा है किसी चीज के साथ। जस्टिस इसमें नेगेटिव 2 तरह से आप इसमें देख सकते हो। एक तो जस्टिस जैसे किसी सिचुएशन में हम हैं, एनी स्टैंस ऑफ एनीथिंग ऑफ लाइफ,
तो आप कह रहे हैं कि जस्टिस के लिए मे बी आप ये कह सकते हो कि जस्टिस के लिए यू गोइंग मैड, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर एक्चुअली इन अ गुड सिचुएशन, जस्टिस के पीछे मत पड़ो टाइप्स, यू नो, लाइक एक एग्जांपल रैंडम मैंने लिया, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो पर्सन बार बार यही, यू नो, लाइक जैसे नागिंग होती है या वो परेशान है, बार बार यही बोलता है मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, सपोज ये कार्ड आ गया, तो आप ये भी बोल सकते हैं व्हाई यू आफ्टर दैट, योर लाइफ इज गुड, यू नो, एक ये एग्जांपल, एक मैंने बहुत रैंडम एग्जांपल लिया है, हमारे पास कोई सिचुएशन अभी नहीं है। दूसरा चीज, जैसे मैंने उसके कलर ऑफ द ड्रेस का भी बोला, तो जैसे रेड कलर डिनोट्स, यू नो, इट्स मार्स रूल्ड, अगर हम इसको बोले कि एंगर रिलेटेड है या टेम्परामेंट का है, तो हम उसको एक सोल्यूशन में सपोज ये कार्ड आ जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जस्टिस आपको मिलेगा, जस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ योर टेम्परामेंट। ओके, You got it? So there can be multiple ways you can relate a reading, you know, in a card. अब of course हम एक ही कार्ड से अगर रीडिंग मेरे को अगर नहीं समझ आ रही, सपोज यू योरसेल्फ आर डूइंग अ रीडिंग फॉर मी, आपने ये कार्ड खोला और आपको लग रहा है कि मेरे को एक से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, आई विल पिक अप अनदर कार्ड, तो आप पूरे डेक में से एक और कार्ड ले लीजिए, अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, यू कैन पिक अनदर कार्ड। सो इट इज अप टू यू व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटेड टू माय क्वेश्चन। अगर मुझे इसी में दिख रहा है, एक ही कार्ड में मुझे दिख रहा है कि that this card is showing that, you know, Malti should be having patience and balance and, you know, of her anger and temperament, तो मुझे दिख रहा है उसमें, मैं इसी कार्ड में क्लोज कर दूंगी। ओके, Got it? या कॉज एंड इफेक्ट भी है ना, जैसे ये एक पॉइंट, अब मैं आपको इन पॉइंट्स के हिसाब से भी बताती हूँ, जैसे एक फेयर डिसीजन, ऑफ कोर्स जस्टिस है, लॉयर या जज से रिलेटेड कोई प्रोफेशन किसी का हो सकता है, तो उसमें कहीं लॉयर या जज का कोई इन्वॉल्वमेंट आए, उससे रिलेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, कॉज एंड इफेक्ट से हम कैसे रिलेट करते हैं, दैट इफ आई एम क्रिएटिंग गुड कॉजेज टुडे आई विल गेट इफेक्ट्स ऑफ इट लेटर, तो आपने जो कॉजेज पास्ट में किए उसका इफेक्ट अभी है, तो कभी कभी ये सिचुएशन में ये कार्ड कॉज एंड इफेक्ट को भी बता सकता है। अच्छा, गॉट इट? ये लिटरल मीनिंग्स हैं मालती एक्चुअली, तो लिटरल मीनिंग्स हम करते करते हम याद हो जाते हैं और हमें आ जाते हैं, बट जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किया, किसी भी कार्ड को देख के आपको जो लग रहा है अपने थॉट प्रोसेस को रिस्ट्रिक्टेड मत रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स दे डू दिस मिस्टेक, दे जस्ट लर्न 4 5 6 चीजें, तभी वो पढ़ने के बाद, सपोज अगर मेरे पास भी जो कई स्टूडेंट्स आए तो वो कई करने के बाद आगे, क्योंकि रीडिंग नहीं आती, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, वो 5 6 चीजें याद कर ली, रटना नहीं है हमें इसमें। It is a very you know you can say intuitive based modality of occult, you don't have to restrict, but of course once you keep doing it you tend to learn, आपको याद भी हो जाती हैं वो literal meanings और वो उसमें दिखने भी लग जाते हैं। So it is not about restricting, it is about having a bigger horizon to your thought process, एक बड़ा थोड़ा सा अपना thought process को मतलब flexible रखना है, rigid नहीं रखना है। ओके, Got it? या सो अब हम रीडिंग्स ले लें। अच्छा, आप क्वेश्चंस के लिए द बेस्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार जो सबको लगता है दे लुक फॉरवर्ड, तो हम अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैम दिनेश जी ने हैंड रेज करा हुआ है, उनको उनका ओके दिनेश जी आपने हैंड रेज किया है, ओके ओके हाँ जी, तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं अपने डेक से कर रही हूँ अभी, दिस इज माय डेक ऑफ कार्ड्स, दिस इज सर अनम्यूट करिए। अच्छा म्यूट हो गया क्या मेरा? तो नहीं मेरा सर, तो अच्छा दिनेश जी को, दिनेश जी का। अब आवाज आ रही मैं? हाँ जी आ रही है। क्या क्वेश्चन है आपका दिनेश जी, पूछिए। मेरे क्वेश्चन मेरी पेमेंट को लेकर है कि मेरी किसी फ्रेंड्स को मैंने पेमेंट दी थी, वो अभी दे नहीं रहा है, आना का नहीं कर रहा है, और मेरे बैंक लोन की प्रॉब्लम है, मेरे पर बैंक लोन भी काफी चल गया है। ओके एक एक करके आप मुझे बताइए, पहले आपने क्या पूछना है? मेरा ये एक फ्रेंड, उसका नाम राजन है, वो मेरी पेमेंट नहीं दे रहा। आपका कौन है? मेरा फ्रेंड था वो। आपका फ्रेंड है अभी। तो फ्रेंड पेमेंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको कब पेमेंट मिलेगी या हाँ कब मिलेगी? देगा क्या जब होगा? देगा।
कोई पर्टिकुलर नंबर है आपका जो आपका फेवरेट नंबर हो? मेरा फेवरेट नंबर 9 है मैम। 9। देखो अभी तो जो पेमेंट है ना, जो जिसने देनी है वो अभी आपको बस बातों में ही लगाए हुए है मेरे ख्याल से। सिचुएशन अभी यही बता रही है कि ठीक आज देता हूँ कल देता हूँ टाइप। क्या ऐसा है? ठीक, वो तो फोन भी नहीं उठा रहे मैम, ना कोई रिप्लाई कर हाँ, रहा है। तो बस उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये कार्ड जो आया है, दिख रहा है आपको? दिस इज एक्चुअली 8 ऑफ कप्स है, तो ये इल्यूजन दिखाता है बेसिकली। तो वो आपको बस एक, अगर पहले बात कर भी रहे थे तो बस वो आजकल वाला ही कर रहे थे, और आपको इसके लिए ना मेहनत करनी ही पड़ेगी कि मतलब अगर उनसे आप उनको कॉल कर रहे हैं या उनके बारे में आप पता लगाएं कि वो कहाँ है, तो उस पर आप वर्क करिए। अगर आप छोड़ देंगे ना तो पेमेंट समझ लो चली गई फिर। ठीक है, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। अब अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनके वेयर अबाउट्स का पता करके उनके पास जाइए और उनका कोई कनेक्ट ढूंढ के उनसे मिलिए या उन तक ये मैसेज पहुंचाइए। ये आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड आया है और ये मनी से रिलेटेड होता है। पेंटिकल इज रिलेटेड टू मनी। तो उस कार्ड को देखते हुए यही लग रहा है कि आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी अपना ही पैसा वापस लेने के लिए। सही बात है। और इसमें भी क्या होगा, जब आप ये करेंगे, अगर आप ये कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे, तो एक दिन एक्चुअली मैजिकली वो सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएगी। मतलब वो मान ही जाएंगे पैसे देने के लिए। ठीक है। ठीक है, यही एक वे आउट है। अदरवाइज कब आज तक? की सिचुएशन में यही है कि उन्होंने आपको, जैसे होता है ना वो सब्ज बाग दिखाते हैं, इल्यूजन बिल्कुल सही क्रिएट बात, करते हैं, बिल्कुल सही बोला तो आपने। वही, हाँ वही दिखाया, वो सिचुएशन बता रही है कि ऐसा ही क्रिएट किया हुआ है। बट देयर विल बी सम मैजिक हैपनिंग, कुछ ऐसा होगा, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपको उस पर मैं मेहनत कर रहा करनी हूँ, अभी अभी मैं वही कर रहा हूँ, उनके रिलेशन के हाँ बंदों को ढूंढ कर हाँ उनका जी, कॉन्टेक्ट लूँ, उनको मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि मुझे, मैं अपने आपके बंदों को बता दूंगा बस आपके रिलेशन कीप के साथ। डूइंग दिस, कीप डूइंग देम। अगर आप 4 दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, यू नेवर नो, एक दिन आपको वो मैजिकल एक वो आ जाएगा कि दैट एक आज वो कोई, उन्होंने आज बात कर ली, अब वो मान गए। ऐसा होगा आपके साथ। सो दिस विल वर्क इन अ पॉजिटिव वे। ओके, कब तक चांसेस है मैम इसका? मैं हाँ उसके लिए मैं एक बार और उठाती हूँ। आपने मुझसे पहले नहीं पूछा, सो आई जस्ट चेक अगेन। अगेन आई पुट अ 9 फॉर यू। ठीक है, अच्छा जैसे हमारे कोर्स में होता है ना, सो आई शो यू ऑल्सो कि कैसे स्प्रेड करते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि इसी तरह से कार्ड को पकड़ना है, इसी तरह से शफल करना है। दे आर लाइक फ्लेक्सिबल थिंग्स, तो वो सब चीजें ऑप्शंस वाइज आपको बताई जा सकती है। मतलब यू विल एक्चुअली लर्न देम थ्रू मी। अच्छा, कब तक आपने पूछा? लग जाएगा इसमें टाइम थोड़ा। अभी स्टैंड स्टिल पे ये सिचुएशन, तो 6 months, 6 months के अंदर अंदर होपफुली। ठीक कैन है, बी लेसर, शायद ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर से मिल पेंटिकल जाएगी। कार्ड आया जिसमें मैंने बताया है, और पेंटिकल कार्ड मनी रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन भी वही था, बाई चांस वो मनी रिलेटेड कार्ड ही आया, और वो टाइमिंग जो मैं इसमें फ्रेम कर पा रही हूँ वो 6 months और लेसर आ रहा है। बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, नॉट विदाउट वर्किंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। समबडी एल्स? एक मेरा क्वेश्चन और था, जैसे मैं सर से एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहता हूँ, तो अगर मैं वो एस्ट्रो वास्तु भी सीखूं, ये चीजें एज ए कंपैरिजन सेम रिजल्ट देती है? हाँ, मतलब अगर हम ये बोले कि जैसे रीडिंग्स की बात करें तो हर एक मोडालिटी अलग अलग है, बट जो एंड रिजल्ट है नॉर्मली सेम होता है। डिफरेंट वेज, आपकी चॉइस, आपकी जो भी चीजें। और अगर आप सब कुछ सीखते हो वन आफ्टर द अदर, नथिंग लाइक इट, वो तो बहुत ही अच्छा है। और मेरा मैं बैंक अब लोन का इसमें भी ये देखना नहीं था, वो बोल सकती कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, बट यस, हर एक का अपना एक
अपना एक वो एक अलग फील्ड है, वो स्पेशल फील्ड है, तो ये स्पेशल फील्ड है और इनके कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं भी कहीं स्टक हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, सो माय कार्ड्स हेल्प मी देयर। आई डू डाउजिंग आल्सो, जैसे पेंडुलम भी मैंने वो सीखा भी और मैं सिखाती भी हूँ। तो वो पेंडुलम भी मुझे कई बार, क्योंकि इट्स सो क्विक एंड सो इजी कि आप एक पेंडुलम से एक यस नो और राइट रॉन्ग टाइप चीजें सीख लेते हो। सो हर एक मोडालिटी की अपनी वैल्यू और अपनी एक सिग्निफिकेंस है, वी कैन नॉट कंपेयर। एक मेरे वन क्वेश्चन और है, वो जो मेरा औरों को भी इस साल मुझे, औरों को भी देते हैं ना, आपने पूछ ओके थैंक यू मैम, so many थैंक more यू मैम, people. Yeah, thank you. नहीं थैंक यू, Ruchi थैंक यू। is waving my, I can Yeah. see your hand. Yeah. Hello, ma'am. Yeah, hi Ruchi, hi. Am I audible? Yes, yes, you are. Ma'am, I want to ask for my daughter. She is Yeah. a BTech student. I want to know about her career and Okay. future. Okay. She's already started doing BTech? Yeah, she's in third year now. Oh dear. Any preference of number? Because since I should be asking. My number is 6. Then I want to choose 6 number. 6. Pick up 6. तो आप स्पेसिफिकली बताइए मुझे कि क्या आपने, जैसे वो बीटेक कर रही हैं, जो Yes, व्हाट ma'am. डू यू एक्चुअली वांट टू नो उसके आगे? मैम एक्चुअली अब उसका आगे उसका फ्यूचर के, क्योंकि अब उसको वो इंटर्नशिप्स वगैरह अब लग रही हैं, तो आई वांट टू नो अबाउट दिस कि कब तक लगेगी या उसका आगे अब नेक्स्ट ईयर से उसका प्लेसमेंट वगैरह है। अच्छा, अभी का जो सिचुएशन में ना, शी इज एक्चुअली ओवर थिंकिंग अबाउट इट, मतलब वो बहुत ज्यादा सोचती है इसके बारे में कि व्हाट विल हैपन आगे का। तो पहले तो आप ये बोल दीजिए कि शी डजंट हैव टू ओवरथिंक, because ultimately wherever she go it will be good. It's a positive card. I picked up 3 cards on this question. तो जो पहला कार्ड है जो उसका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, that is showing that she is very very disturbed and she is overthinking, to be very precise. तो वो उनको नहीं करना है। True ma'am. There's somebody who's actually unmuted, जो आवाज आ रही है मुझे, so you can mute yourself. So यहाँ पे जो दिख रहा है कि जो भी होगा सोल्यूशन वाइज, जैसे wherever she, अच्छा आप ही किस रुचि से आ रही थी क्या आपके बैकग्राउंड? Oh, that's okay, that's okay. I thought you'll have a disturbance. It's okay. जैसे अब जो फाइनल वो आ रहा है उसमें ये है कि it will be good only, और उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। There is divine support with her. There is divine support with her. उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे 1-2 टाइप, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप अभी कुछ शेयर करना चाहो, where she wants to go? ऑप्शंस मींस नहीं मैम, अभी तो ऐसा कुछ अभी तो कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है। इंडिया में रहना है, इंडिया के बाहर करना है, कुछ इस तरह का दिमाग में है? हाँ, she want to go abroad for her higher studies actually. Actually मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि वो उस कार्ड में दिख रहा है कि that she is keen on going away from India. So वो दिख रहा है। हाँ, वो अगर वैसा ऑप्शन बनता है, so it will be good for her career. वो अच्छा रहेगा money wise भी, and she'll be able to do well in that, and she'll be able to earn money and respect and stuff like that if she is going abroad. That can be a good option for her. वो अच्छा रहेगा. So yeah, she can, मतलब there is a likely chance that she will go abroad. Okay. And this going abroad is for higher studies or for job and all? ये एक्चुअली मुझे जो लग रहा है इन कार्ड्स को देख के, ये ज्यादा जॉब का ही लग रहा है। स्टडीज हो भी सकता है कि जैसे आपने बताया कि BTS है, तो मे बी पोस्ट द BTS she wants to pursue something, but just after completing that there is a possibility that either she'll take up some work or she'll go for studies, but there are likely chances for moving her abroad. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Nice reading, ma'am. All the best. Thank you. And to you also. Thank you, ma'am. Rachna ji. Yeah, ma'am, my question is that yeah, okay, I'm seeing you again. Yeah. Okay. Yeah, my question is that my daughter wants to go for a trek, and she's already booked for a trek. Okay.
and this is scheduled. She's already booked it. This is scheduled for the 2nd of October. However, she is a dentist. She's completed her BDS, but she has to take up the counseling for MDS. Now, वो counseling की dates आज ही आई हैं, and according to those dates, there seems to be a clash. So she's very perturbed about the fact because वो 6 साल से plan कर रही है कि मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ये trek पे जरूर जाऊंगी. तो मुझे ये जानना है for her satisfaction, will she be able to go? And if she is able to go, will she be able to go on the 2nd of October, or should I ask her to change the dates? ये मैं अपने आप ही कार्ड्स खोल रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि मैं आपसे नंबर नहीं पूछूं. So I hope you're okay with that, no? Absolutely, you're the boss. Okay, thank you. So आपका question है that she should go now or she should, postpone it, no? First of all, will she be able to go? Cards के हिसाब से तो लग रहा है that she should be able to go. Okay, in that case, should we stick to the current schedule or should we postpone? Because there is an option that she takes her chance in the second group or the third group. That will happen when? The second happens, they have varied dates. Like she's booked for the 2nd, but she has options to go on the 14th, on the 21st, on the 27th of October. Actually, ना, she is very, very strongly wanting to go now. जो मुझे cards में भी लग रहा है कि that she, she has kind of manifested it only. कि ये मेरे को जाना ही है. तो वो जो एक जैसे एक फूल कार्ड है जो बेसिकली 0 कार्ड मैंने दिखाया था ना, तो वो क्लिफ पे भी खड़ा है. वो सिचुएशन जो आप बता रहे हो, क्लिफ पे खड़े होने का मतलब वो बंदा नीचे भी गिर सकता है. तो वो सिचुएशन वही बता रही है ना कि जैसे उनके अभी वो लाइंड अप है. So that, but she is like, this person is like looking with all the stuff packed, तैयार एकदम एक जर्नी पे निकलने के लिए. बिल्कुल typical of that card है ये. बिल्कुल typical of that card. So she's so strongly, manifested this thing in her, this, that she will go, and I think वो जाने का लग ही रहा है कि that she will go and it will be fine. ऐसा कुछ मुझे इन cards के हिसाब से नहीं लग रहा है that she should be postponing it or something like that. I think she can go ahead because एक ace का भी card आया है इसमें, which is a beginning. So if this question is in context to her, this trip. So ace means a beginning. So like she can always take up that, that particular thing to start with. So this actually, as per the cards, it seems that she will go and it should be fine. So then that means I should not bother about changing the dates. I can stick to the... I still, because it's related to her child's career, so I'll just do another couple of cards so that, I also want to be like sure about it. She herself is not bothered. I think you are more bothered. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है. Because she keeps passing it on to me. As if, looking towards me to take a decision for her. I think you yourself are getting थोड़ा sleepless जब से ये पता चला है कुछ ऐसा, मतलब एक sleeplessness वाला situation नहीं हो जाता. अब पता है आज ही आया था, tension हो गई आपको. ये incident actually everything happens by chance. मतलब ये dates counseling की आज ही आई हैं और आपका webinar आज ही था. Incidentally I saw it and I joined it. So, and this question popped up. नहीं, ये ठीक लग रहा है. King of Swords का कार्ड है तो I think वो मतलब अगर जा रही है तो you should not be worried about it. अभी वाले उसमें मुझे नहीं लगता है कि as per the cards it is showing that you should be worried, but yes you are worried क्योंकि इसमें देखिए ना 9 of Swords का है तो इसमें एक बंदा जैसे उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है वो बहुत टेंशन में है. आई एम श्योर वो आप होंगे क्योंकि आपको टेंशन ज्यादा हो रही है उस चीज को लेके ना. वो लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू द कार्ड. बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मुझे डिसीजन देना है और मेरे पास आंसर है नहीं. How can I take a decision basis dates which I don't have? Yeah, I know actually. But आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे आप you can always tell her, क्योंकि मैंने अभी फिर एक कार्ड और ड्रॉ किया है जो intuition
दिखा रहा है, मतलब दिस इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बेसिकली हाँ, दिस इज अ ब्लाइंड फोल्डेड मैन, एंड जैसे आंखें बंद है और हाथ भी कहीं स्ट्रगल्ड है, यू नो, जैसे कहीं थोड़ा सा फंसे हुए हैं, तो हम अपने इंट्यूशन या हाँ, अपने थॉट में ही सोच सकते हैं ना। तो इस कार्ड की डिकोडिंग जनरली उससे होती है, तो यू कैन ऑलवेज टेल हर व्हाट योर इंट्यूटिव माइंड सेज, यू नो, you okay. put that final call to her. As per the cards it should be okay, but then you can always tell her कि आप ही finally decide करो what your intuition or your intuitive mind says. That is, I think, going to work perfect. ठीक है, got it. ठीक है? Okay, thank you. Got it. I hope, yeah. I Thank hope you it so works. much. You're most welcome. Thank you. You're most welcome. I know. I will let you know. Yes, do that, please. Yes, anybody else? Okay. Should I, ma'am? हाँ Yeah, जी. ma'am. Yeah, ma'am. आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. It's very nice learning Thank tarot you. card. Thank you. It is my I'm passion not actually. making you learn, शर्मिला जी. अभी तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रही हूँ उसके लिए. तो मैम जो आप Probably if hints you दे come रहे in, हो ना, हाँ जी. जो आप hints दे रहे हो उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा That है. is so lovely. I'm so grateful actually. अगर आपको उससे भी कुछ आ रहा है, but I'm really thankful. I can just say that. Thank you so much. आप क्वेश्चन बताइए अपना. हाँ जी मैम. I am a single mother and Okay. my daughter is 24 years and she is a BTech engineer. I just wanted to know about from last 2 years she has been in a multinational, but she is not getting promotion and she is eagerly waiting for that. Okay. So I wanted to know when will she get this success? When is her birthday? It is 10th August 98. Okay, 10th August. प्रमोशन इंडिया के बाहर वो सोच रही हैं कहीं, मतलब मल्टीनेशनल आपने बोला ना. जी मैम. प्रमोशन अगर होता है तो मुझे लगता है तो इंडिया के बाहर ही होने की पॉसिबिलिटी लग रही है ज्यादा. शी माइट मूव आउट ऑफ इंडिया, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के. जी मैम. तो मतलब टाइम थोड़ा अभी होगा भी नहीं. इनफैक्ट इसको मैं ज्यादा अच्छे से ऐसे प्रेजेंट करना चाहूंगी कि वो अपना जो प्रमोशन अब्रॉड देख रही हैं कहीं. जी मैम. इज इट सो? उनको ऐसा इंटरेस्ट है कुछ बाहर? जी मैम. शी इज थिंकिंग. या हाँ, बिकॉज यू नो जैसे ये कार्ड है, अब वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड ज्यादातर वही है कि ग्लोबल उसमें दिखाता है, इंटरनेशनल. तो इफ शी इज वांटिंग अ प्रमोशन, आई थिंक हर लाइकली चॉइस, उनका ज्यादा इंटरेस्ट यही है कि वो इंडिया के बाहर ही प्रमोशन कहीं हो, सो ज्यादा अच्छा रहेगा. दैट इज व्हाट शी फील्स राइट नाउ. बट आपने पूछा वो कब, और कब पूछा ना आपने टाइम पीरियड? जी मैम. जी मैम. देखिए, अगर वो थोड़ा सा ना जैसे वॉचफुल होके करें चीजें, तो मतलब जैसे होता है कि सारे सर्कमस्टांसेस को देख के एक वाइज डिसीजन लें. जैसे होता है कभी कभी क्या होता है, जैसे यंगस्टर्स में ही रहता है कि फास्ट कोई एक यू कैन से एक अपॉर्चुनिटी आई तो वो बहुत क्विकली कर लेते हैं डिसाइड कि मैंने ये चूज करना है. बट इनके कार्ड्स जो मैंने अभी ड्रॉ करे हैं उसके हिसाब से थोड़ा ये है कि वो सारी सिचुएशन को देख के ही डिसाइड करें कि यू नो उनको मतलब उसके प्रॉस कॉन्स अच्छे से इवैल्यूएट करके करें. ये नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है वो जरूरी अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सो शी हैज टू रीथिंक अबाउट दैट. थोड़ा सा सोच के टाइम ले. मे बी अगर ये अपॉर्चुनिटी समझ लो आज उनके पास आती है कि दैट यू नो 1 महीने में कहीं प्रमोशन की ऑप्शन आ गई, सपोज आपने मेरे से आज बात की है एंड बाय चांस यू नो आप मुझे बताते हो कि मैम मुझे 1 महीने में आ रही है ऑप्शन, ऐसा कुछ, बट शी हैज टू रीथिंक. तो आप उसको मतलब उस सिचुएशन को या अपनी डॉटर को यही मतलब आपकी डॉटर के लिए मैं ये गाइड करना चाहूंगी कि वो उसको कम से कम 6 महीने तक सोचे. ओके. यू नो दैट इज शी शुड एक्चुअली कंसीडर इट फॉर अ टाइम पीरियड, हाँ नॉट जी. जस्ट मतलब उसको रैंडम. एकदम से हाँ एक्सेप्ट नहीं कर एकदम से लेना नहीं. चाहिए हाँ, कि जरूरी नहीं 6 months. आई मीन टू से लाइक दैट इम्पोर्टेंट इट इज टू कंसिडर टाइम. मतलब टाइम के हिसाब से रीथिंक करना जरूरी होगा. बिकॉज इमीडिएट वाले में उनको लगेगा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट देन वो बहुत ज्यादा मतलब वो थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है इन सम कॉन्टेक्स्ट. तो थोड़ा सोच समझ के करें. तो इमीडिएटली आज अगर हो रहा है तो मे बी 1-2 महीने 3 महीने 6 महीने तक जो भी लग रहा है, जस्ट गो एट हर ओन पेस. मतलब शी शुड एक्चुअली नॉट fall for that opportunity.
Okay, ma'am. Okay, बट ये इंडिया के बाहर की ज्यादा पॉसिबिलिटी व्हाट शी इज वांटिंग हो रहा है। मैं एक और कार्ड भी देखती हूँ कि दैट एक्चुअली वो बाहर जाने वाला होगा कि नहीं। हाँ, वो बाहर जाने वाला अच्छा होगा। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, सन का कार्ड है। अगर वो बाहर जाने का ऑप्शन होता है, बिकॉज वो आपका क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में था, तो कार्ड बहुत अच्छा है, वो अच्छा होगा। बट ओनली थिंग विच आई एक्चुअली वांट, actually want to guide her, through you, is that she should be watchful. इमीडिएट आने वाली चीज को ऐसे ही नहीं कंसिडर करें, थोड़ा टाइम दें। जी मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस स्वाति, देयर समथिंग। रजनी जी। या रजनी जी आए। आपकी आवाज नहीं आ रही रजनी जी। अब वैसे आपको आवाज आ रही है स्वाति रजनी जी की? नहीं मैम, रजनी मैम आप हेडफोन हटा दीजिए, या प्रॉपर लगे नहीं है वो। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रहे, अब आ रहे। हाँ, तो मेरा ना बहुत ही खास सवाल है। मेरे हस्बैंड जो है वो घर से चले गए, 1 साल हो गया है, और पहले भी गए थे। तो पहले तो हम ले आए थे उन्हें 7-8 महीने में किस तरह से मना के। अब ये दोबारा चले गए गुस्से में, आफ्टर रिटायरमेंट जैसे थे। पर इस बार मैं मना लेती, पर इस बार मेरे में या तो ईगो आप कह लीजिए या सेल्फ रेस्पेक्ट आप कह लीजिए, तो मैं पहल नहीं कर रही हूँ। तो मैं क्योंकि ये आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे? उनका बर्थडे कब आता है? हाँ जी, उनका बर्थडे कब आता है? मेरा आपके 3 मार्च। हस्बैंड का? हाँ जी, आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का 31 जुलाई। ऑफिशियल भी मनाते हैं 10 फरवरी, और एक पता नहीं चलता कौन सा। बट वैसे 31 बर्थडे जो है वो 31 जुलाई है। हाँ जी। तो वो अपने आप आएंगे या क्या है, वहीं रहेंगे, या ईगो है उनमें भी? ईगो तो है। हाँ, पिछली बार तो बिना हम ही कार्ड्स लेके के भी लग रहा है कि ऐसा होगा, बट देन हाँ। ओके, वो चाहते हैं अगर मैं आज पहल करूं तो आ जाएंगे, मगर मुझ में इस बार कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट या कुछ ईगो बोल लीजिए आप, वो है। मतलब टच से मस नहीं हो रही मैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। कुछ ज्यादा क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या मनी का, या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सब कुछ है। गुस्सा ज्यादा है, बस गुस्सा आता है और निकल जाते हैं। हाँ, उनका देखो जाने का जो रीजन है ना, जैसे आपने इगोइस्टिक बोला, मतलब उनका ना पर्पस ही लाइफ में हो गया है। अटेंशन सीकर होता है ना, जैसे बच्चा होता है जिसको अटेंशन नहीं मिलती, वो अटेंशन सीकर हो चुके हैं कि मेरे को। और वो ना जैसे जैसे ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ये कार्ड में बहुत क्लियरली नजर आता है कि जैसे जो ये पर्सन है, अगर ये इनको आपके हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं लूं, कि वो मतलब प्रॉब्लम से या जो भी सिचुएशन में है, और वो जैसे हम किसी को ऐसे देखते हैं ना, अब देखा ना मैंने तुम्हें बता दिया, समझ आ गई ना, इस तरह का एटीट्यूड है इस कार्ड में जो पर्सन है। तो इसकी डिकोडिंग ही ये हो रही है कि दैट वो एक लेसन, पता नहीं कुछ जो कि इतना पॉजिटिव नहीं है, वो आप लोग को देना चाहते हैं, इसीलिए वो ये करते हैं बार बार। ये बहुत क्लियरली इस कार्ड में आ रहा है। वो तो है, हमको जताना चाहते हैं कि भाई ये करूंगा अगर लेसन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है हम लोग? हाँ जी, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है हम? विच जर्नी? आई एम सॉरी। ट्विन नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट टाइप का कुछ ऐसा? क्योंकि मैं अच्छी खासी खुश हूँ, बैठे बैठे एकदम सैड हो जाती हूँ।
जैसे कि उनकी जो नेगेटिविटी मेरे को कैच करती है। हाँ देखो, नेगेटिविटी एनर्जीज जो होती है वो होती है, कोई भी नेगेटिव पर्सन है घर में तो एनर्जीज का एक्सचेंज तो होता है। जैसे मैं खुद एक प्राणिक हीलर भी हूँ, तो एनर्जीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है कि कहीं से भी अगर हम होके आते हैं एकदम ठीक होते हैं, तो घर में भी तो वैसे ही है ना, अगर कोई नेगेटिव इंसान है उसकी एनर्जीज आप कितना ज्यादा एक्सचेंज होती हैं आपके साथ ही, सो इट हैपेंस। तो ये वहाँ दुखी है कि सुखी है, ये बिल्कुल सुख खुश होकर रह रहे हैं या क्या है पता नहीं। अभी जहाँ रह रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है खुशी है वहां पर जहाँ भी है। आई होप देयर इज नो एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप वाला स्टफ ना, ऐसा तो नहीं है ना, बट जहाँ भी है वो खुश हैं वैसे अभी। और बस यही है कि अपना गुस्सा और वो सब दिखाने वाला जो है ना सिचुएशन, वही है कि उनको बार बार एक तरह से मजा चखाना बोलते हैं, बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर्स, ऑल दीज टर्म्स आई एम यूजिंग कि मैं आपको समझा पाऊं, उनका पर्पस ये हो गया अब लाइफ में। तो हम भी मतलब हम भी यही सोच रहे हैं ना कि बार बार का किस्सा है, इस बार हम नहीं कुछ करेंगे, ये है। हाँ तो लेट इट बी अनदर बिगिनिंग, आप मत करो कुछ, लेट तो इट ये बी कुछ अनदर है कि बिगिनिंग। अपने आप कब तक क्या सोचेंगे कुछ? आपका मन क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए आपको? भाई मैं तो चाहूंगी ना कि भाई ठीक हो अंदर जाए। से आप जैसे एक तरह से बोल रहे हैं कि मैं उनको नहीं उनसे बात करना चाह रही, बट एक्चुअली आपका जो अंदर से मन क्या कह रहा है? अगर फोन करेंगे बुलाएंगे तो मैं चल लूंगी। अगर वो बुलाएंगे तो आप चले जाना, वो आपका आप अपने इंट्यूशन पे ही चलना, क्योंकि कार्ड भी वही है। बट अगर वो नहीं बुला रहे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब उसको एक नई बिगिनिंग की तरफ जब तक नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, ऐसा कुछ बस 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 ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा पीछे पड़ने, क्योंकि अगर आज आ भी गए उन्होंने फिर से वापस वही करना है, ये आपके कार्ड्स में बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं तो फिर कुछ से बोलना है कि दैट आई टीच यू अ लेसन। 1 साल हो गया तो कुछ श्योरिटी है कि खुद आएंगे या फिर हमें ही इनको कुछ करना पड़ेगा? 1 साल ऑलरेडी हो गया है। हाँ जी, 6 महीने पहले 7-8 महीने एक बार और रह के आए हैं, 3-4 महीने रहे फिर निकल गए। वैसे तो ये भी दिख रहा है कि इस तरह कार्ड में दिख रहा है कि वापस आ भी सकते हैं अपने आप जल्दी। नहीं मेरी इंट्यूशन कह रही है अंदर, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा होगा। देखो अभी तो जहाँ पे नहीं, ऐसा है जो कार्ड के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे वो खुश हैं अभी, तो आप उसकी चिंता मत करो। बट ये है कि जैसे अब क्योंकि उनका टेम्परामेंट ही वैसा हो गया है कि एक मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे बार बार मूड बदलता है, जैसे आपने बताया अभी कि एकदम गुस्सा आया तो चले गए, तो वो उस तरह की उनकी पर्सनालिटी हो गई है। तो अगर थोड़े टाइम में उनको लगेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी, ये भी कुछ दिनों में वापस भी आ जाए। नहीं रियलाइज करेंगे कुछ नहीं नहीं राइज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। उनको बस यही है कि जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, उस तरह समझाते रहने का काम आपको करना ही पड़ेगा, लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि 2-2 पेज के कार्ड्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनको जैसे अपना व्यू पॉइंट होता है ना, कि जैसे आप कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, आप अपना पार्ट करते रहो। ये कार्ड्स के हिसाब से ही आ रहा है, आप अपना पार्ट करते रहो। शायद 10 बातें नहीं समझ पाएंगे, एक तो समझ जाएंगे। तो एक तरह से वो एक मतलब एक पैटर्न आपका हो गया है लाइफ का, हो सकता है कि आप वो ऐसा कर भी रहे हैं, तो अगर वापस आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी आप एक्सेप्टेंस कर लो। एंड आपकी इंट्यूशन भी ये कह रही है कि इट इज ओके, एंड आपको लग भी रहा है कि वो वापस आ जाएंगे। बट आपको उनको समझाना और उनको जो भी गाइड करना अपने हिसाब से एज अ वाइफ, वो आप करते रहना, डोंट स्टॉप दैट। नहीं वो मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं होती, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं, जब आएंगे, जब वापस आ जाए तो अब अपना पार्ट तो करेंगे ही ना। तो आप उनको बस समझाइएगा ये चीज कि मतलब जो आपको लगता है कि जरूरी है समझाना, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में वापस भी आ सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी। कितना देना कुछ बताएंगे अंदर? रजनी जी और भी लोग हैं प्लीज वेटिंग में। एक बार बस इनका ही मैं कार्ड ले लेती हूँ, लास्ट पूछ रही हूँ। हाँ इट्स ओके, इट्स ओके। एक्चुअली वो आपके हस्बैंड के जाने से रिलेटेड भी है, सो ऑफ कोर्स वो इमोशनल फैक्टर भी है। तो एक बार मैं शफल करके फिर से कर लेती हूँ। अच्छा, और एक और खास बात होती है टैरो कार्ड्स में कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हम अपने क्लासेस में प्रैक्टिकल सेशंस में भी बताते हैं कि कभी भी किसी क्वेरेंट को ना ऐसे ही मतलब डिप्रेस्ड नहीं भेजना है।
अच्छा डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं करना है कि उसको खुश करके भेजना है जस्ट बिकॉज मेरे को उसको खुश करना है, मतलब सेटिस्फाइड हो कहीं ना कहीं, उसको एक डिप्रेसिंग नोट पे नहीं खत्म करना है। तो जैसे अभी आपका ही रजनी जी जो क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा डिप्रेसिंग नोट पे नहीं छोड़ना चाह रही क्योंकि और भी लोग हैं वैसे। स्टिल आई जस्ट टेक अप वन मोर कार्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट। आपने क्या पूछा एग्जैक्टली अभी? ये कब तक आएंगे? इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि उनको अचानक से ही ना कोई, जैसे होता है कि डिवाइन गाइडेंस की कुछ मिलेगी, तो अचानक से उनका मूड बदला, तो वो कुछ दिनों से लेके एक आध महीने में पॉसिबिलिटी बहुत है आने की। मतलब जैसे एक महीना भी नहीं, मे बी 1-2 महीने, बट फ्रॉम फ्यू डेज टू मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है। और वो अचानक से कोई डिवाइन गाइडेंस ही उनके दिमाग में आएगी, उसकी वजह से वो अपना बिल्कुल रास्ता रुख बदल लेंगे अपनी सोच का, और अचानक से ही he will come back. थैंक यू मैडम। हिसाब से, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट रजनी जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ जी, स्वाति, अभी और लोग हैं हमारे साथ जो क्वेश्चन? मैम यस मैम, आपको क्वेश्चन लेने हैं कि बस? मैं सोच रहा हूँ एक ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम, इट्स ऑलरेडी 11:10 ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नितिन जी है मैम, नितिन जी। हाँ जी नितिन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैम मैंने अभी अभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो अभी अभी मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था मैडम। तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मुझे वहाँ नौकरी नहीं लग रही है और मैं वहीं पे नौकरी करना चाहता हूँ। और सेकंड पार्ट ये है कि मेरी अभी शादी नहीं जुड़ रही है। शादी नहीं हो रही है? हाँ, शादी नहीं हो रही है और नौकरी भी नहीं लग रही है मैडम, बहुत बेकार बैठा हूँ मैं घर पे। तो इसके लिए कुछ रीजन और कोई रिजल्ट बताइए मुझे। आप अभी तक किस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे? जी, अदानी पावर प्लांट में। और वो जॉब आपने छोड़ी है या क्या उसमें सिचुएशन थी? जी जी, मैंने जॉब छोड़ी है। वो जो मेरा पहले फर्स्ट मैरिज हुआ था, तो फर्स्ट मैरिज में मेरा डाइवोर्स हो गया मैडम। 2016 में मेरा शादी हुआ था, तो वो डाइवोर्स तो हो गया। उसके बाद मैं सेकंड मैरिज की सोच रहा हूँ, तो मेरी शादी नहीं जुड़ रही, और बट मैंने उसी लड़की के लिए जॉब छोड़ दिया था। जब आपकी मैरिज पहले वाली थी उस लड़की के लिए आप बोल रहे हैं? तो अब आपका क्वेश्चन है कि आपकी मैरिज और आपकी जॉब यस मैम कैसे और कब होगी? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैम, डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं थोड़ा, तो प्लीज। मैरिज जो है ना, वो तो जैसे अब 1 साल मान लीजिए, जैसे प्रोबेबली अब जैसे ये सितंबर अक्टूबर, अगले अक्टूबर, अब से लेके अगले अक्टूबर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, ठीक है। और जॉब जो है वो जॉब में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा पॉजिटिव कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं क्या? हाँ, बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किस चीज का बिजनेस करूँ ये भी मुझे अभी। बिजनेस कुछ ना फूड इंडस्ट्री से, अगर आप के दिमाग में कुछ है फूड इंडस्ट्री से कुछ? हाँ है तो सही है, बट अगर देखिए कार्ड्स के हिसाब से फूड इंडस्ट्री का आ रहा है, मैंने इसीलिए पूछा आपसे। अच्छा, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पे पार्टनरशिप में अगर फूड बिजनेस से रिलेटेड कोई बिजनेस आप सोच रहे हैं करने का या स्टार्ट करने का, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, वही है ना मैडम कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा हूँ। सोच तो सभी रहा हूँ,
कदम नहीं बढ़ रहा है, क्यों पता नहीं। नहीं, आप कर लो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो आपको फियर तो नहीं, मैं जैसे प्लीज एक मिनट, मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल ना नौकरी करना चाहता हूँ मैडम। उस दिन नौकरी, अभी बैंक बैलेंस तो मेरा जीरो। देखिए जैसे जो आपके माइंड में अभी चल रहा है, जैसे अगर मैंने फूड बिजनेस बोला, तो फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में आप जॉब भी करके पहले देख सकते हो ना। जिस चीज का आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो उसी फील्ड में जॉब के लिए आप अप्लाई करो, थोड़ा करेज रखो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ढूंढो जॉब्स के बारे में, और जो भी उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं, अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो मिल जाएगी आपको जॉब। ऐसा नहीं है। वो एस कार्ड है, बिगिनिंग एक दिख रहा है। और जहां तक मैरिज की बात है तो वो अक्टूबर तक के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी काफी लग रही है, अगले अक्टूबर तक। ठीक है, बट एक साल और है, 1 ईयर और है मैरिज के लिए तो दिख रहा है। पर जॉब के लिए अगर आप उस पर थोड़ा वर्क करोगे ना, जैसे आपके माइंड में अगर आ रहा था कि फूड बिजनेस आपको करना है, तो आप उसी इंडस्ट्री में हाँ जी, फ्रूट बिजनेस ना, खाने से रिलेटेड, फ्रूट, वेजिटेबल, एनीथिंग, खाना, एनीथिंग टू डू विद फूड आइटम, FOOD, यस, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री। जरूरी नहीं है कि खाना, सब्जी और फ्रूट टाइप है। आई मीन कितना बड़ा इंडस्ट्री है वो, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढोगे जॉब तो आपको मिल जाने की उम्मीद है। और शायद आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो अगर आप बाद में बिजनेस भी सोचते हो तो आप उसी फील्ड में जॉब भी कर लो अभी, और फिर उसके बाद उसी में शायद बिजनेस भी करोगे तो अच्छा रहेगा फॉर दैट। मैडम थोड़ा मेरी लाइफ भी थोड़ा सही रहेगी ना अभी? वो तो देख रहा है आपकी मैरिज के बाद आपके वो चांसेस बेटर होने के हैं लाइफ के, लाइक हैप्पी टाइम जैसे हम कहते हैं ना। जब आपकी मैरिज होगी तो मुझे लगता है उसके बाद जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से वो दिख रहा है कि थोड़ी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, बेटर हो जाएगा। लग रहा है उन कार्ड्स के हिसाब से तो यही लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी स्वाति, को हम मैम कंक्लूड एक कर लेते पूजा हैं। जी हैं, उनका क्वेश्चन ले लीजिए, लास्ट उनके मैसेज है। ठीक है, Yeah. Hi. हाय। I just have a question that is there any chance of relocation for me within India or outside India? At present, are you in India? Yeah. Yes. Okay. What's your date of birth, Pooja? 27th April. In coming 6 months or 1 year, basically. Relocation के तो बहुत ज्यादा possible chances हैं, बहुत ज्यादा हैं। In coming 6 months or 1 year? 6 months to 1 year. Okay. 6 months to 1 year. Yeah, but you'll have to juggle with थोड़ा सा मतलब balance of finances वगैरह देखना पड़ेगा। उसको देखते हुए ही आप move करना, that maybe if your financials are good here and you're moving to a different place, थोड़ा balance बनाने में थोड़ा मुश्किल होगी, या वो सोच समझ के ही करना। Relocation के chances तो बहुत हैं, but just kind of reval on the financials of stuff, maybe यहाँ पे जो आपका income expense है तो दूसरी जगह पे जाके वो कैसा रहेगा and all that, उस पे थोड़ा working करके ही आप decide करना which place you will go to. Okay, so will it be within India or outside India? That I'll just check because it was not very prominent in this. And will it be beneficial taking that call? It is going to be beneficial, that I could see in the previous card. Whichever place you're relocating, it is going to be good. Most likely outside India lag raha hai. Most likely it's going to be outside India. Okay. 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 Thank you. All the best. Thank you. Hanji Swati, so we can conclude. Yes मैम, मैं कोर्स का थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्लीज। आप सबको मैम ये दिख रहा है ना पोस्टर? मैम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है टैरो कार्ड का 13 सितंबर से, और इसमें हम आपको 10
क्लासेस देंगे जिसमें पढ़ाएंगे आपको, लाइव क्लासेस होगी जूम पे, और टाइमिंग 7 to 9 है, 7:30 या 7 to से स्टार्ट होगी। और उसमें उसके बाद 5 प्रैक्टिकल सेशन दिए जाएंगे। और अगर आप आज या कल में कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको एक टैरो कार्ड का पैक फ्री गिफ्ट में दिया जाएगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 7,800। दैट्स इट। बाकी मैम आपको अच्छे से बताएंगी। It's just that I would love to, have like people who are here in the webinar. तो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो कोर्स में भी आते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि कंसल्टेशन में तो हम आपको जैसे सिर्फ आप ही को बेनिफिट देते हैं, बट वंस यू लर्न, आप जब सीख लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप और लोगों को भी बेनिफिट उस चीज का दे सकते हो। एंड यू कैन बेनिफिट जो है या जो भी मतलब एक सॉल्यूशंस दूसरों को देने के साथ साथ जिन लोगों के लिए, जो लेडीज हैं होम मेकर्स या जिनके पास कोई work nahi hai, so they can start with their work also, so that can be your income earning way also once you learn this. So it is very good because most of my students are also doing that. So wo acha kar rahe hain apne apne tarike se apne is field mein. So I would actually love to empower everybody, so that is my purpose. So thank you again I will actually want to say thanks once again for joining this webinar, and look forward to see you, most of you, there in the webinar. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all. All right. I hope you all enjoyed. Unmute कर देते हैं मैम सबको। Okay. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.